بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول وحشت بیرم کا اگلا حصہ۔ اور سوائے موت کے اس کا کوئی حل نہیں تھا کہ اس کو بخشا جاتا۔ اس کو سدھارنے کا عزمہ اور محل میں رکھنے کا فیصلہ بدیہا کی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا، اس کا بیرم کو ہی اندازہ تھا۔ لیکن اس وقت سوائے چپ رہنے کے اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ لوگ جا چکے تھے، وہ شخص بھی محل کے اندر بھیج دیا گیا تھا۔ اب وہاں صرف بدیہا اور بیرم ہی تھے، اور پھر چند ہی پلوں میں وہ بھی غصے سے بھری ایک سخت نظر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پہ ڈالتا محل کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی ساتھ اس نے اے سی کو چلایا اور ٹھنڈک کو بڑھا دیا تھا۔ بدیہا کے آنے سے اے سی بند ہی رہتا تھا، اور آج بیرم نے اسے چلایا تھا، وہ بھی بدیہا کی وجہ سے ہی، جس نے شدید قسم کا غصہ اسے دلا دیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ دو چار جڑ دیتا اس پاگل کو، جس کے دماغ میں پتہ نہیں کون سی خرافات پل رہی تھیں، خاص کر بیرم کو لے کے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے یا عقل کی اندھی ہو؟ کچھ دماغ کا استعمال کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ بدیہا کے آتے ہی وہ اس پہ چڑھ دوڑا تھا، پر اس کو واپسی کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کے اس نے جلدی سے اے سی کو بند کیا۔ کمرے کی ٹھنڈک ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، اس کے سامنے جاتا وہ راستہ رک چکا تھا۔ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لیکن مجھے فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ خیر، پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ جو ہو چکا وہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے لیا ہے میں نے، اور اس کے لیے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ تم جواب دہ ہو، مجھے جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ کیا ملکہ بنتے ہوئے ہماری کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ مجھے آپ کو اپنے ہر فیصلے کا جواب دینا پڑے گا؟ چہرے پہ طنزیہ تاثرات لا کے بیرم کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ نہیں ہے جواب۔ چلیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے کبھی کبھی غلطی۔ اب سامنے سے ہٹیں، مجھے باہر جانا ہے۔ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ نجم اب بالکل خاموش تھا۔ بیرم نے اب دیکھنا یہ تھا کہ پہلے کی طرح انتقام پروان چڑھتا یا پھر بدیہا کے دل نرم ہی رہے گا جیسا کہ اب تک تھا۔ لیکن وہاں کی ملکہ بننے کے بعد سچائی اتنی دیر تک چھپ نہیں سکتی، اس کا اندازہ بھی تھا بیرم کو۔ لیکن دونوں صورتوں میں صورتحال بیرم کے لیے پیچیدہ ہونے والی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے، وقت کی رفتار کسی کے لیے دھیمی نہیں ہوتی، تو محل والوں کے لیے بھی ویسی رفتار تھی، تیز۔ اور ان تیز رفتار دنوں میں بدیہا نے گاؤں والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ ان کے رہنے والے کچے مکان اور لوگوں کے کھانے کی اشیاء کا اچھا خاصا انتظام کروایا تھا، جو محفوظ مقام پر رکھوایا گیا تھا بستی میں ہی۔ بچوں کے لیے الگ سے کھیلنے کی جگہ اس نے چند دنوں میں ہی بنوا دی تھی۔ بستی کے سب لوگ اپنی نئی ملکہ سے خوش تھے، بس ایک خوش نہیں تھا تو وہ بیرم، جس کے ہر فیصلے سے بدیہا کو اختلاف ہوتا تھا۔ اختلاف کی وجہ یہ بھی تھی کہ سب لوگ بہت پراسرار سے تھے، جس کو وہ بھی جب بھی بیرم کو بتاتی تو وہ بات گول مول کر جاتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بدیہا کو بیرم سے متنفر کر رہی تھیں کہ ایک بار تو وہ بدیہا کی بات کو سنجیدگی سے لیتا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ بیرم کے ہر فیصلے کے خلاف جانا بدیہا نے تہیہ کر لیا تھا۔ اپنے آدھے سے زیادہ وقت وہ بستی والوں کے ساتھ گزارتی اور باقی کا جھمکی کے ساتھ۔ بیرم کے لیے جگہ تو بن گئی تھی، اس کے دل میں زبردستی کی جگہ جس طرح میں وہ طریقے سے نہیں آیا، بلکہ ٹھنسا تھا، ایسا بدیہا کا ماننا تھا۔ یہاں سے جانے کا بھوت اب بھی وہی تھا، جس سے وہ وقتاً فوقتاً بیرم کو آگاہ کرتی رہتی تھی، اپنی ہٹ دھرمی کے جوہر دکھا کر۔ عام دنوں کی طرح کا وہ دن تھا، جھمکی سے مل کے بھی وہ اس چور کے پاس ہی آئی تھی جسے سدھارنے کا ذمہ اس نے لیا تھا۔ آج سے تم رہا ہو، اور اب تمہاری کوئی بھی مشکوک حرکت بیٹھک تک پہنچی تو یاد رکھنا وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ اس کی کو رہائی کا پروانہ سناتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ شاید یہی غلطی جب بدیہا پر بھاری پڑنے والی تھی، اس پر رکھا گیا بدیہا کا سخت پہرا ہٹا دیا گیا تھا۔ بیرم کے لیے اس وحشی کو سزا دینا کوئی مشکل نہیں تھا، پر اگر وہ کوئی قدم اٹھاتا بھی تو بدیہا کی نظروں میں اپنے آپ کو مشکوک کروا دیتا۔ اس لیے وہ خود بھی بدیہا کی نگرانی کروا رہا تھا، کہیں وہ جس کو سدھارنے کا عزم لیے بیٹھی ہے، خون اور انسانی گوشت کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ غلط ہی نہ کر بیٹھتا۔ پر اس سب میں ایک شخص کی نگرانی کروانا تو وہ بھول ہی گیا تھا، جھمکی، وہ بھی تو انسان تھی، اس کی جان کو بھی تو خطرہ ہو سکتا تھا۔ ملکہ کی نظروں سے رہائی ملتے ہی وہ اپنے شکار کی طرف بڑھ گیا تھا، جو اس وقت اکیلی ہوتی تھی۔ اس وقت ملکہ بھی محل کے باہر بستی میں جا چکی تھی، معمول کے مطابق۔ اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر
भूख का एहसास दुगना हो गया था और फिर नींद की आगोश में सोई हुई उसकी सिसकारी भी किसी ने नहीं सुनी थी, जो एक वहशी चमगादड़ की खुराक बन चुकी थी। आवाज़ निकलने का मौका ही कहाँ मिला था उस मासूम को, जिसके सीधा दिल पे वार करके अब वो चीर पार करके उसे खा रहा था और बहते खून को चाट रहा था। उर्मा के बाद वो दूसरी इंसान थी जो महल में मौत के घाट उतरी थी, लेकिन अब वाली मौत में तो मरने वाले को ही एक ही झटके में उस जंगली ने दर्द से निजात दिला के चीर फाड़ डाला था। और वो ना तो अपनी बाजी को बुला पाई और ना ही खुद कोई मुज़ाहमत कर पाई अपने बचाव में। महल में रोज़मर्रा के काम अंजाम दिए जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कौन सी क़यामत टूटी थी मासूम बच्ची पर। वहीं उस पुजारी की खूनम खून लाश अपने साथ हुए जुल्म पर इंसाफ मांग रही थी, लेकिन इंसाफ तो तब मिलता ना जब किसी को पता होता। बेरम के लिए अब की बार एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी जिससे वो अनजान था। तुम लोगों के ज़िम्मे एक काम लगाया था, पर अब तक तुम लोग नाकाम हुए। अब तो उसका बेटा सब कुछ संभाल रहा है। जब उसके बाप को आसानी से मारा जा सकता है तो उसके बेटे को अब तक क्यों जिंदा छोड़ा है? आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। अब तक हम चुप हैं, वरना कब्ज़ा करना और उसे मारना मुश्किल नहीं था हमारे लिए। हर चीज़ का एक वक्त होता है बच्चे, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं हमसे, जब हम उसको भी ख़त्म कर देंगे और उसके ख़ानदान के एक एक फ़र्द को भी। बस थोड़ा और इंतज़ार करो और फिर सुकून ही सुकून होगा। ना कोई रोकने वाला होगा और ना रोकने वाली। झुमकी कहाँ है? महल में आने के बाद ही बदिया ने झुमकी के बारे में पूछा। चूँकि उस वक़्त बदिया के साथ होती थी और बदिया के इतने इंतज़ार के बाद भी अब तक नहीं आई थी, तो उसे पूछना पड़ा। पता नहीं मलका, कमरे से बाहर तो नहीं आई झुमकी। मुलाजमा जवाब देती वापस जा चुकी थी, जबकि बदिया अब झुमकी के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे को खोलते साथ ही अभी उसका पहला कदम कमरे के अंदर पड़ा था और उधर उस वहशी ने नज़र उठा के दरवाजे की जानिब देखा था। खून से लुथड़ा मुंह और हाथों में पकड़ा गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह और हाथों के दरमियान में रह गया था, जबकि बदिया की हालत ऐसी थी जैसे पत्थर का मुजस्मा। ना वो कमरे के अंदर खड़ी थी और ना बाहर। सामने का खौफनाक मंजर देख के आंखों देखे पर यकीन नहीं कर पा रही थी वो कि आया जो देख रही है वो सच है या फिर एक डरावना ख्वाब। इस दरिंदे ने एक नज़र बदिया को देखा और मलका को सामने देखकर उस वहशी ने तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिए थे। उसे अपनी मौत अब सामने नजर आ रही थी, तो फिर क्यों ना जितना खाया जाता वो खा जाता। और ये मंजर बदिया के लिए तो उसकी रूह खींचने के मुतरादिफ था। झुमकी झुमकी, बदिया की आवाज़ ने पूरे महल के दरोबाम को हिलाकर रख दिया था। बदिया की आवाज़ से बेरम और मुलाजमीन, क्या नजम और ऐना तक भी अपने कमरों से बाहर निकलकर झुमकी के कमरे की जानिब दौड़े थे। उधर बदिया दौड़ के झुमकी तक पहुंची थी। उसे ये तक होश नहीं था कि वो जंगली भी तो वहीं बैठा था, उसे भी नुकसान पहुंचा सकता था। वो तो बस झुमकी को देख रही थी, जिसका सिर्फ मुंह ही सलामत बचा था, बाकी के जिस्म को तो चीर फाड़ करके अपनी खुराक बना लिया गया था। वहशी की नज़रें अब झुमकी से होते हुए मलका यानी बदिया पर टिक चुकी थी। एक और शिकार बदिया अब भी पथराई नज़रों से झुमकी को देख रही थी। जब उसे अपने बाजू पर चुभन का एहसास हुआ, इससे पहले कि वो किसी नुकसान से बदिया को दो चार करता, बेरम ने कमरे में पहुंचते ही उस जंगली वहशी को काबू कर लिया था। लेकिन तब वो वहशी चमगादड़ बन के उड़ना चाह रहा था, जिसे बेरम ने एक ही जिस्म में अपने काबू में कर लिया था। सारी चीज़ें बदिया के सामने हो रही थीं। अभी एक इंसान के रूप में खड़ा वहशी चमगादड़ बन गया और बेरम ने उस दरिंदे को पकड़ा हुआ था। कुछ कहा नहीं था उस पर से झुमकी की हालत और खून, ये सब उसके सामने हो रहा था, पर उसकी जुबान गंग थी, जैसे तालू से चिपक कर रह गई हो, और आंखें पत्थर बन गई थी। झपकना तो जैसे भूली गई थी गोल आंखें। इस मौके पर ऐना ही थी जिसने जाके बदिया को पकड़ा था और वहाँ से उसे लेकर गई थी। कहा था मैंने, अब और क्या नुकसान करवाना है। एक मासूम की जान तो जा चुकी है, अब दूसरी को भी असलियत पता लग गई है। अब क्या करोगे? काश तुम पहले सुन लेते बेरी। नजम बेरम को अब भी समझा रहा था। बस करें आप, जो करना होगा मैं कर लूँगा, आप जाएं यहाँ से। वो वहशी अब भी बेरम की सख्त गिरफ्त में फड़फड़ा रहा था और बेरम का दिमाग अगले लाए अमल के लिए तेज़ी से चल रहा था, पर उस वहशी चमगादड़ को इंजाम तक पहले पहुँचाना ज़रूरी था और झुमकी के बचे कुचे हिस्सों को भी दफनाना था और उसके बाद बदिया को भी तो संभालना था। सब चीज़ें अचानक ही तो उन पर आन पड़ी थी। ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोड़ भी होते हैं जहाँ हर चीज़ इंसान की तवक्को के बरक्स होती है, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो चीज़ यूँ अचानक हो जाती है कि कुछ लम्हे और वक्त के लिए तो इंसान गंग रह जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और बदिया भी इन्हीं इंसानों में से थी
جس نے آج دو ایسی چیزیں دیکھی تھیں جن کو قبول کرنا ایک انسانی دماغ کے لیے تو بہت مشکل تھا، بلکہ مشکل نہیں ناممکن تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ کون تھے یہ لوگ؟ اور جھمکی؟ اس کی حالت کو سوچ سوچ کے اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ آنکھوں دیکھا جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، پر اس سب پر یقین کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ اینا کے کمرے میں پڑے پلنگ پر ساکت و جامد بیٹھی تھی کہ پھر اچانک پتہ نہیں اس میں اتنا اشتعال کہاں سے آیا کہ سر پر پہنا وہ خوبصورت تاج 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس نے سر سے نوچتے ساتھ ہی سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ اینا اب بھی چپ چاپ بیٹھی بدیہا کو دیکھ رہی تھی۔ بدیہا کی حالت کا اندازہ اسے تھا، تبھی وہ اسے وہاں سے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس کی لال سرخ انگارہ آنکھیں اور سختی سے بھینچی مٹھیاں اس کے غصے اور حیرت کو کم کرنے میں ناکافی ثابت ہو رہی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ اپنے لہجے کی نمی پر قابو پاتی وہ اینا کو دیکھے بنا اس سے پوچھ رہی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، یہاں تک کہ 5 منٹ تک جب اینا نہیں بولی تو مجبوراً اسے اس کے سر پر پہنچ کر چیخنا پڑا۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہو تم لوگ؟ اب کی بار پاس پڑی چھری جو کہ نزدیک پڑی سیب کی ٹوکری میں تھی اسے اٹھا کر اس نے سیکنڈوں میں اینا کی گردن پر رکھا۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں کون ہو تم لوگ؟ جلدی بولو، نہیں تو یہ چاقو تمہارے ان کنچے جیسے آنکھوں کے آر پار ہوگا، بلکہ اسی طرح جس طرح اس معصوم بچی کی آنکھوں کو بے دردی سے نوچ کے نکالا گیا ہے۔ اینا کے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم بھی ایک مخلوق ہیں۔ اینا نے آرام سے حقیقت کھولنا شروع کی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم 2 طرح کے ہیں، جانور بھی اور انسانوں جیسے بھی۔ ہلکی پر واضح الفاظ میں بولتی وہ بدیہا کو چونکا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ چلو تلے تمہیں دکھاتی ہوں۔ ہاتھ کے اشارے سے بدیہا کو پیچھے کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی منٹ اپنے پر پھیلاتی وہ ایک چمگادڑ بن چکی تھی۔ بدیہا پتھرائی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی اس کو اب چمگادڑ سے انسانی حلیے میں آتا دیکھ رہی تھی۔ لے کر آؤ باہر اس وحشی کو۔ وہ درندے نما چمگادڑ بنا بیرم کے ہاتھوں میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے پہرے داروں کے حوالے کرتا وہ انہیں نیچے باغ میں لانے کا بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، پر جانے سے پہلے وہ جھمکی کے بچے کچے وجود پر کپڑا دینا نہیں بھولا تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سب ایک الگ عدالت لگائے کھڑے تھے جس میں بیرم بالکل سیدھ میں سربراہ کی جگہ پر کھڑا تھا، جبکہ لوگ آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ بستی میں بھی خبر آگ کی طرح پھیلی تھی، تبھی سب جمع تھے، اور وہ وحشی جس کے گلے میں زنجیر تھی اب انسانی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے ہاتھ چاٹ رہا تھا، یا شاید بچے کھچے خون کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ زنجیر کا سرا بیرم کے پاس کھڑے ملازم کے ہاتھ میں تھا۔ لوہے کی کیلیں لے کر آؤ جلدی، بیرم حکم دیتا۔ اب وہ سخت نظروں سے نجم کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظروں میں طنزیہ مسکراہٹ تھی کہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لوگے، مار دو گے اسے، پر یاد رکھنا تم ایک اور ارما اس محل میں لا چکے ہو۔ لوہے کی کیلیں لاتا اب وہ خود چل کے اس وحشی تک آیا۔ ایسا ہی تھا، وہ سزا چاہے جیسی بھی ہوتی اپنے ہاتھوں سے ہی دیتا تھا۔ یہ اصول اس کا خود کا بنایا ہوا تھا اور اس پر وہ سختی سے عمل پیرا بھی تھا۔ بالوں سے پکڑ کے اس نے زنجیر میں بندھے اس جانور کو پیچھے کو گرایا اور اب نیچے کو جھکے اس کے بازو پہ پاؤں رکھے ہتھیلی پر کیل رکھا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک دل خراش چیخ باغ کے احاطے میں گونجی تھی، جبکہ ہتھیلی پر رکھی کیل جو کہ لوہے کی بنی کم سے کم 1 فٹ جتنی تھی، وہ کیل بیرم نے دوسرے پاؤں سے اس کی ہتھیلی میں کھوب دی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے آنکھیں میچ لی تھی اس منظر پہ، جبکہ یہ تو 1% بھی نہیں تھا جو جھمکی کے ساتھ ہوا۔ ایک کے بعد دوسری کیل بھی اس کی ہتھیلی میں گاڑ دی گئی تھی اور پیروں کے ساتھ لوہے کی بڑی اور بھاری گیندیں باندھ دی گئی تھیں، اور اب وہ درندہ بالکل چتلٹا چہرہ اوپر کیے جانب کیے ہوئے تھا۔ چاقو لاؤ۔ بیرم اس وقت سب کچھ اپنے دماغ میں چلتی سوچوں کے عین مطابق کر رہا تھا، جس میں اسے جھمکی اور اس کے ساتھ ہوا سلوک نظر آ رہا تھا، اور اس کے مجرم کو سزا دینا اس کے اور بستی والوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ جس کام سے منع کیا گیا ہو اور وہ برا کام آپ کر گزرو تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور وہی اب ہو رہا تھا۔ چاقو سے اس کے سیدھے بازو کی کوہنی پہ اس تیز دھار آلے کی نوک رکھتا وہ مسکرایا تھا، اب ایسے جیسے ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا۔ تیز دھار چاقو اب آہستہ آہستہ دباؤ کے ساتھ اس کی جلد میں دھنس رہا تھا، اور آس پاس کھڑے لوگ اس منظر سے نظریں چرا رہے تھے۔ تیز دھار چاقو اب اس کی کوہنی کی جلد چیرتا ہتھیلی تک پہنچ چکا تھا۔ بازو میں لگے چیرے سے خون ابل رہا تھا اور گوشت صاف نظر آ رہا تھا۔ لو اب پیو۔ اسی چاقو کی نوک سے ٹپکتے اسی کے خون کو اس نے اس کے ہونٹوں کے درمیان ٹپکایا تھا۔ اس درندے کی چیخیں اور دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں۔ اب اپنا خون پیو۔ مزہ نہیں آیا؟ چلو یہ لو۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کے بازو سے گوشت کا ٹکڑا الگ کرتے بیرم نے اس وحشی کے منہ میں ٹھونسا تھا،
जो होंठों को बाहम पेवस्त किए अपने ही खून के जहरीले जायके से बचना चाह रहा था। कुजा के उस पर अपना ही गोश्त पे दर पे इसी तरह के चीरे उसके दूसरे बाजू, टांगों और चेहरों पर देते बेरम जुमकी के साथ हुए जुल्म का अजाला कर रहा था। उस मासूम बच्ची का दिल तक उस जानवर ने नहीं छोड़ा था। माना कि इनकी असलियत जानवर ही थी, पर इनमें और आम जानवरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और इस फ़र्क को मिटाने वाले को वो ऐसी सज़ा देना चाहता था कि आगे आने वाले लोग याद रखेंगे। भयानक जुर्म की सज़ा भी भयानक ही होती है। वो जानता था अपने ही लोगों को इंसानी खून और गोश्त के जायके पर लगाने वाले और कोई नहीं, दूसरे कबीले के सरबराह थे, जो दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके थे कि अपने लोगों को ही गंदगी लत लगा रहे थे। असलियत जानने के बाद वो चुपचाप चलती कमरे से बाहर आ चुकी थी। असलियत इतनी भयानक होगी इसका अदराक अब हुआ था। उसे कुछ गड़बड़ तो थी, इतना तो मालूम था उसे, पर वहमो गुमान में भी ये सब नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पिछले चंद दिनों में वो यहाँ से निकलने के चक्कर में बेरम के इतने नज़दीक आ चुकी थी कि शायद एक आध दिन तक अपने जाने का इरादा छोड़कर वो हमेशा के लिए बेरम को कबूल कर लेती। बेरम के एक एक फेल से अपने लिए छलकती मोहब्बत नजर आती थी, और वो जो अपनी नफ्सियात का झुमकी को बताया करती थी, उल्टा सोचने वाला, वो भी बेरम ने उसे साबित किया था कि ये सिर्फ साइकी है इसकी, जो बचपन से अपने दिमाग में बिठाती आई है, वो जबकि दर हकीकत एक आम इंसान है। अब जब वो बेरम के हवाले से अपने अंदर नए जज्बात महसूस करने लगी थी, तो वो सब जज्बात किसी शिद्दत से चिकनाचूर हुए थे। इसके अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता था। वो एक जानवर से मोहब्बत करने चली थी। वो वहशी अब दर्द से बेहाल होते तड़प रहा था, पर बेरम को खुद भी उस पर रहम नहीं आया था। उसी चाकू की नोक से उसके बाएं गाल पे चीरा मारा। वो अब उसके अंदर अपनी उंगली डाल रहा था, और उसी उंगली को उसने मोड़ के बाएं आंख के अंदर से निकाला। अब हाल कुछ यूं था कि बाएं गाल से अंदर गई उंगली मुड़ के बाएं आंख से बाहर नजर आ रही थी, और यही हाल उसने दाएं गाल और दाईं आंख का भी किया। बेरम, बेरम, ऐना हवास बाख्ता सी दौड़ती हुई बाहर आई। ऐना, बेरम की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जाइए आप सब, बस्ती वालों को जाने का बोलता अब वो मुलाजमीन की जाने मुड़ा। लेके जाओ इसको और तहखाने में मौजूद भट्टी में डाल दो इसे। बेरम, वो बदिया महल से बाहर चली गई है। जंगल की तरफ मैंने रोकने की कोशिश की थी, पर वो रुकी नहीं। ठीक है, मैं देख लूँगा। और हाँ, बदिया की जगह मलका बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम इतनी परेशान ना हो, उसकी फिक्र करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ से जाओ अपने कमरे में, और अब बाहर नजर ना आना तुम मुझे। तनबीही नज़रों से उसे घूरता हुआ वो महल के खारजी रास्ते की तरफ बढ़ गया। इतना पुरसकून वो इसलिए था कि महल के बाहर बदिया को रास्ता तो मिलना नहीं था, सवाए जंगल के। जब तक बेरम खुद ना चाहता, तब तक बदिया की लाख कोशिशें भी उसे वहाँ से नहीं निकाल सकती थी। महल के बाहर घना जंगल था, जहाँ सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। आसपास कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं इतनी सुनसान जगह पर ये महल और ये लोग कैसे रहते हैं। एक पल को उसने सोचा, पर अगले ही पल अपनी अकल पर मातम भी किया कि क्या ये लोग इंसान थोड़ी हैं। काश वो भी इन लोगों जैसी होती, तो फिर तो कोई मसला नहीं था। कुछ वक्त के लिए तो उसे झटका लगा था असलियत जान के, लेकिन इनके दरमियान रहते रहते वो कुछ हद तक तो समझ गई थी कि जैसे ये लोग दिखते हैं वैसे नहीं। इसलिए थोड़े ही वक्त में खुद को संभालती अब वो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। ये तो तय था कि अब वो इस महल में नहीं रहेगी, ना ही इन चमगादड़ों में। बदीहा, बदीहा। अभी वो अपनी ही सोचों में आगे बढ़ रही थी जब बेरम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, और इस आवाज़ में क्या कुछ नहीं था, बेचैनी, घबराहट, गुस्सा और फिक्र। बदीहा का दिल एक बार से किया कि उसे आवाज़ दे और हमेशा के लिए यहीं रह जाए, लेकिन एक इंसान और चमगादड़ उसके आगे सोच के ही उसने अपने हाथ में दबी चीज़ को देखा, जो निकलने से पहले नजम ने उसके हाथ में थमाई थी, कि ये कहकर कि यहाँ से निकलने का रास्ता है ये। अगर इसे खोदोगी तो फिर तुम बेरम के बगैर यहाँ से निकल नहीं पाओगी। घने जंगल में निकलने का रास्ता तो क्या, वापसी का रास्ता भी अब बदीहा को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बेरम की नज़दीक आती आवाज़ अब उसके हौसले घटा रही थी। मलिका, मलिका। आवाज़ में अब की बार रोब शामिल था। मैं जानता हूँ आप यहाँ से जाने का ख्याल निकाल दीजिए अपने दिमाग से, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आपको। मेरे 3 गिनने तक अगर आप बाहर नहीं आई मलका, तो यहाँ जो होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। 1, 2, 3। बेरम की 3 गिनने से पहले ही जंगल से एक चीज़ उड़ती हुई आसमान में दाएं जानिब बढ़ गई, पर बेरम की नज़रों ने एक लम्हा लिया था उसे पहचानने में, और वो गिनती छोड़ता उस काले परिंदे के ताक़ुब में था। आसमान पे छाया मलजगा अंधेरा, और इस बुलंदी में उड़ते वो 2 परिंदे। आगे वाला परिंदा अपने पैरों को फैलाता तेज़ रफ्तारी से उड़ना चाह रहा था, जबकि उसके पीछे उड़ते परिंदे ने अपनी रफ्तार बढ़ाकर खुद को इसके करीब किया था और अपने लंबे परों से आगे वाले के परों पर वार किया
جس سے پہلا پرندہ جو کہ دوسرے والے کے مقابلے میں چھوٹا تھا اپنا توازن کھوتا نیچے کو جانے لگا تھا، جب پیچھے والے نے اپنے پنجوں اور پروں کی مدد سے آگے والے کو سنبھالا اور پھر ایک زوردار پرواز سے واپسی کی جانب مڑ گیا۔ بیرم اب اس کالے چھوٹے پرندے کو لیے محل کے اندر کھڑا تھا، چہرے پہ سختی اور ہاتھوں کی گرفت میں نرمی لیے وہ نجم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیر کو زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھولتا وہ نجم کے کمرے میں داخل ہوا۔ نجم جو کہ کرسی پہ ارما کی تصویر کھولے بیٹھا تھا، یوں اچانک بیرم کے آنے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ میری زندگی سے؟ سب کچھ تو چھین چکے ہیں، میرے ماں باپ تو چلے گئے، آپ کی بیوی نہیں رہی، تو کیا اب میری بیوی کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیوی ظالم نکلی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے ڈر سے آپ میری دنیا اجاڑنے چلے تھے۔ آپ کی بیٹی نے کچھ کم کیا ہے؟ اسے اصلیت بتا کے جو آپ اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ تھما کر میری زندگی بھی ویران کرنا چاہ رہے ہیں۔ تف ہے آپ جیسے چاچا پر۔ ہاتھ میں پکڑے چمگادڑ کے منہ سے چھوٹا سا دانہ نکالتے اس نے نیچے پھینکا تھا اور دونوں ہاتھوں سے بدیہا کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا وہ بنا نجم کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بدیہا کے بازو پہ لگے زخم سے اب ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ پہلے وحشی کے ناخنوں سے لگے زخم اور اب پرواز کے دوران بیرم کے وار سے لگا زخم گہرا ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں نرم پلنگ پر بدیہا کو لٹا کے اب اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ بدیہا کے بازو سے خون کے ٹپکتے چند قطرے اس کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ابھی وہ ان قطروں کو پی گیا تو آنے والے ہر مہینے بعد اسے یہ چند بوندیں چاہیے ہوں گی۔ پر دوسری طرف اسے اپنے اندر سے آواز آ رہی تھی، تمہاری بیوی ہے، تم پہ جائز ہے، تم کون سا کسی غیر انسان کے خون کی طلب کر رہے ہو؟ خود سے جنگ لڑتا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا۔ انسانی خون اس کی طلب کبھی نہیں رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا تھا اپنے باپ کو بھی وہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو خون کی چند بوندیں اپنے اندر اتارتے تھے۔ اور جب وہ سوال کرتا تھا کہ ماں آپ ماں کے خون کے یہ چند قطرے کیوں پیتے ہیں، تو وہ اور ماں ہنستے ہوئے کہتے تھے جب تمہاری شادی ہوگی تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اور واقعہ آج اسے پتہ چلا تھا۔ آج سے پہلے یہ طلب تو اسے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اب اچانک انہی سوچوں کے دوران اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ اس کے زخم پہ جھکا ان لال قطروں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کیسپر اینا کو محل سے لے کے چلا گیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے اینا کے بتانے پہ اس نے بدیہا کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ بیرم کے بدیہا کو ڈھونڈنے کے نکلتے ہی کیسپر اینا کو لے کے چلا گیا۔ جانتا تھا کہ اگر واپسی پر اینا اسے نظر آتی تو اس کا بچنا مشکل تھا۔ کیسپر میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا خون پی جاؤں، پر اتنے مزے کا تماشا چھوڑ کر تم مجھے یہاں لے آئے ہو؟ ابھی تو ملکہ کا رونا پیٹنا دیکھنا تھا میں نے۔ چلی تو وہ گئی تھی لیکن وہ اس کی واپسی کا منظر بھی دیکھنا تھا مجھے۔ تم خود تو عقل سے پیدل ہو اور چاہتی ہو میں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں وہاں رک کر تماشا دیکھنے کے چکر میں۔ اینا تمہیں کب سمجھ آئے گا بیرم کے پاس اب ایک عدد بیوی کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی توجہ پہلے تمہارے لیے تھی، بلکہ اب بھی اتنی ہی ہے، پر فرق صرف اتنا ہے اب وہ خود نہیں بلکہ میرے ذریعے تم پر نظر رکھتا ہے۔ بیرم کے چمچے چپ ہو جاؤ، مجھے تم سے بات بھی نہیں کرنی، اس لیے اپنی چونچ بند رکھو۔ ہونٹ کے کنارے پہ لگے خون کو صاف کرتا وہ پشیمان ہوتا اپنی بے خودی میں کی گئی حرکت پر وہ بھی کیا کرتا، اس کے خود کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ایک ٹرانس میں ہوا۔ وہ اپنی غلطی سے زیادہ غصے سے اسے بدیہا پر آ رہا تھا جو نجم کی دی ہوئی گولی منہ میں رکھ کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ یہ گولی نجم نے ارما کے جانے کے بعد بنائی تھی، جس سے صرف بیرم واقف تھا، پر بیرم نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا تھا اس وقت کہ ایسی بھی کوئی چیز بن سکتی ہے۔ پر آج جب بدیہا کو جنگل میں آواز دی اور آخری گنتی پر بدیہا کی جگہ کوئی چمگادڑ نکلا تو بیرم کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ کافی عرصہ پہلے نجم کی بتائی ہوئی گولی یکدم دماغ میں آئی تھی، جس سے عام انسان بھی کچھ وقت تک ان جیسا بھیس لے سکتا ہے، اور اس وقت جنگل میں بدیہا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد نظریں گھما رہی تھی۔ سامنے ہی بیرم آنکھیں اس پہ گاڑے بیٹھا تھا، بنا پلکیں جھپکائے وہ بدیہا کو گھور رہا تھا۔ بیرم کو دیکھتے ساری جنگل والا گزرا سارا منظر یاد آ گیا، کس طرح اس نے نجم کی دی ہوئی گولی بنا سوچے سمجھے منہ میں ڈالی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ گولی ڈالتے ساتھ ہی وہ چمگادڑ بن کر اڑ رہی تھی، اور اڑتے وقت اس کے پیچھے بھی کوئی چیز تھی، اور پھر اس چیز نے حملہ کیا تھا اس پہ۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی وہ کسی کے شکنجے میں تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ بیرم کی آنکھوں میں چھپا طنز اور آواز میں مضبوطی اسے سوچوں سے حال میں لے آئی تھی۔ میں تو کچھ نہیں سوچ رہی، البتہ آپ ضرور سوچ رہے ہیں کہ کیا بات کی جائے۔ اب تو مجھے اصلیت بھی پتہ چل گئی ہے، اور یہ دیکھ کے کہ آپ نہیں تم وہاں تمہیں حیرانی تو ہو رہی ہوگی، میں ڈر کیوں نہیں رہی ہوں تم سے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آپ مجھ سے نہیں ڈر رہی،
بیرم اس کی بات ختم ہوتے ساتھ ہی بدیہا کے بالکل نزدیک آ کے بیٹھ گیا تھا، اتنے نزدیک کہ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپ کو اوہ معافی، تمہیں پتہ ہے میں اب تک تم سے دور کیوں تھا؟ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تھی میری اصلیت، اب تمہیں پتہ بھی ہے اور تم ڈر بھی نہیں رہی مجھ سے۔ بیرم بات کرتے کرتے اپنا چہرہ اس کے نزدیک لے آیا تھا۔ ڈر نہیں رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوفروں والی حرکت کرو گے۔ اس کے نزدیک آنے پر وہ چوٹ کرتی وہ پیچھے کو ہوئی۔ فوراً ایسی حرکتیں مزار پہ آنے والے مستنڈے کرتے تھے۔ بدیہا کو 1 منٹ نہیں لگا اپنی اصلی بولی پہ آنے میں۔ بدیہا کے چہرے پر ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا، پر بیرم کے چہرے کے تاثرات اسے بہت انوکھا کچھ بتا رہے تھے۔ اس وحشی کی حالت کے بعد اسے بیرم سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن بیرم سے ڈرنے کے بجائے وہ بالکل مطمئن تھی۔ جھمکی کی دردناک موت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، پر اب بیرم کے لیے ابھرتے نئے جذبات بھی تو اپنا آپ منوانے پر تلے ہوئے تھے، اور اب بھی تو یہی وجہ تھی کہ خوف نہیں تھا، لیکن ایک جھجک تھی جو بدیہا کے اندر تھی۔ لیکن بیرم تو لگتا تھا آج ہی صبح کچھ صحیح کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ جو ہاتھ نچا کے کچھ بولنے والی تھی، اچانک سے اٹھنے والے درد پہ تڑپ کر ہاتھ نیچے کر گئی۔ تم کون سا عذاب ہو جو یوں مجھ پر مسلط ہو گئے ہو؟ بدیہا بول رہی تھی درد کے باوجود۔ اس کی بات کرنے کا کو نظر انداز کرتے اس کی تڑپ پر بیرم نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جب وہ ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہوئی، یہ عذاب اب ساری زندگی تم پر مسلط رہے گا ملکہ جی، تمہیں واقعی مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ بیرم نے ایک بار پھر اچنبے سے بدیہا کو دیکھا جو پرسکون تھی۔ بدیہا کو دیکھ کر اسے ارما یاد آئی، اس کا ظالم روپ۔ اگر بدیہا بھی ویسی ہوتی تو، پر وہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے یقین سے تو وہ ہلکا پھلکا تھا، اور یقین بھی تو اس کی ہستی کا دیا ہوا تھا جس نے بدیہا جیسی سرپری تک اس کی رسائی ممکن کروائی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک محبت کرنے والا شوہر بنا ہوا تھا، ورنہ کہاں اس کے اس پہلو سے کوئی آشنا تھا۔ بدیہا کے بولنے سے پہلے ہی وہ مڑ کر اس تک آیا، اس کی آنکھوں پہ اپنا لمس چھوڑتا، اب وہ اس کے زخم کے اوپر لگے چند ننھے قطروں کو اپنی زبان کی نوک سے چھوتا بنا اسے دیکھے باہر چلا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر بدیہا پوری آنکھیں کھولے اس کی حرکت پر سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ سوچو کہ بھنور میں جینے والی لڑکی اب زندگی کے نئی پہلوؤں سے روشناس ہو رہی تھی، پر ان پہلوؤں سے آگاہی میں ابھی اسے کرب سے گزرنا تھا۔ وہ اب بھی بیرم کے زیر اثر تھی، اس کے ہونٹوں کا لمس ایک ٹھنڈک کی طرح اس میں سرایت کر رہا تھا۔ کب اتنی اپنائیت مل ہی نہیں تھی، اور آج بیرم کا مان بھرا لمس اسے سرشار کر گیا تھا۔ یہ اکلوتا رشتہ اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ اب صرف بیرم کے گرد اس کی سوچوں کے دھاگے گھومنے لگے تھے، لیکن ان دھاگوں کی الجھن میں بدیہا خود کتنا الجھنے والی تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک الگ زندگی میں قدم تو رکھ ہی دیا تھا اس نے، اور زندگی کو چلانے والا ہم سفر بھی ساتھ تھا، پر کیا وہ بیرم کے ساتھ ہنسی خوشی رہ پائے گی؟ ایک یہی فکر اسے کھا رہی تھی۔ اب اینا کو لے کے پہنچو ابھی کے ابھی، بیرم کی آواز کیسپر تک پہنچی تھی۔ بیرم، اینا تو میرے ساتھ نہیں ہے، جانتے بوجھتے کیسپر نے آگ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ کیسپر، ابھی کے ابھی مطلب ابھی جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، اپنا دماغ مت چلایا کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، پہنچو جلدی۔ اپنی بات ختم کرتے ساری وہ رابطہ منتقع کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اینا کی ہوائیاں اب صحیح معنوں میں خشک ہوئی تھیں۔ کیسپر کی بات سن کے بیرم نے ابھی کے ابھی بلایا ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہماری تعداد ان سے 3 گنا زیادہ ہے، جبکہ ان کی تعداد ہم نے مٹھی کے برابر بھی نہیں چھوڑی۔ سردار خاموش، ہوش سے کام لیجئے، جوش سے نہیں۔ بھلے ہم زیادہ ہیں اور تھوڑے، لیکن ان کے پاس بیرم ہے جس کا دماغ اتنا تیزی سے سوچتا ہے جتنے ہمارے 100 افراد مل کے بھی نہ سوچ پائیں۔ ان کے پاس اس وقت ہتھیار ہے جسے ہم نے آرام سے ہتھیانا ہے، جھینا چھپٹی سے نہیں۔ چھینا چھپٹی اور شاطر پنے سے ایک جھٹکا ہم نے برسوں پہلے دیا تھا، جس کا اثر آج تک ہے۔ اب بھی یہی کرنا ہے، ایسا جھٹکا دینا ہے پیار سے انہیں کہ اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اگلی نسل آئے گی تو تب کی بات نہ۔ بے ہنگم کہکا لگاتا وہ موٹی جسامت کا سردار پل میں چمگادڑ بن کے غائب ہو گیا تھا۔ کیسپر، اس بار بچا لینا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ بیرم کے غصے سے مجھے کون بچائے گا؟ معصوم شکل بنائے اینا اب کیسپر کی منتیں ترلے کر رہی تھی کہ اسے بیرم کے غصے سے بچا لے۔ نہیں نہیں، تم نے تو تماشا دیکھنا تھا نا، اب دیکھنا جا کے کیسا تماشا ہوگا۔ بلکہ میں تو کھانے کا بندوبست بھی کر لوں گا جلدی سے، زیادہ مزہ آئے گا دیکھنے میں۔ کیسر نے بھی اسے چڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں کون سا سچ میں تماشا دیکھنا چاہتی تھی؟ اب بھلا ملکہ کے بارے میں ایسا سوچوں گی؟ میں جلدی سے پینترا بدلتی وہ کیسپر کو باتوں میں لگا رہی تھی کہ آخری وقت پہ بیرم کو بول سکے کہ کیسپر کی وجہ سے دیر ہوئی آنے میں، اور اس کی جگہ بیچارہ کیسپر پھنس جائے۔ اینا بی بی، اپنی یہ چال بازیاں بعد میں آزمائیے گا، ابھی چلیں۔ اینا کی چالاکی کو سمجھتا وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی چالاکیوں میں اب وہ نہیں آنے والا۔ کمرے سے باہر آتی وہ اب دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ آیا کدھر جائے، باہر باغ میں جائے یا بیٹھک میں جائے۔
उस वक़्त सुकून होता है। बाग की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि फिर उस वहशी की हालत जहन के पर्दे पर उलहड़ आई जिसको बाग के बीचों बीच सजा दी गई थी, और फिर वापस कदम मोड़ते अब उसका रुख बैठक की जानिब था, जहाँ सुकून से वो अंदर को कंगाल तो सकती थी कि अब आगे वो कैसे एक चमगादड़ के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। घुप अंधेरे में आंखें मूंदे वो टांग पे टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। बदिया की आहट को महसूस करते उसने अब टांग हिलाना बंद कर दी थी, जो वो पहली हल्की हल्की हिला रहा था, जबकि बदिया ने बेरम को नहीं देखा था। इस अंधेरे में वो चलती हुई सीधा किसी की गोद में आ टिकी थी, लेकिन वो किसी नहीं उसका बेरम था। बज़ाहिर तो वो वहाँ मौजूद कुर्सी पे बैठी थी, लेकिन उसे क्या मालूम था बेरम पहले से वहाँ बैठा था। अंधेरे में उसने भी गौर नहीं किया और कुर्सी पर बैठने के बजाय बेरम की गोद में बैठ गई थी। आहा, खैर तो है मलका जी, इतनी अनायतें, वो भी एक ही दिन में। मुस्कुराते हुए उसने बदिया के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार खींचा था, जबकि वो शर्म से गुलनार हो गई थी। उठने की कोशिश करती वो बेरम के हल्के को तोड़ना चाह रही थी, और वो अंधेरे में वाज़े नजर आती उसके गाल होते चेहरे को महव होके देख रहा था। आहा आहा, मसनूई खांसी की आवाज़ से वो दोनों होश में आए थे, जब भी बेरम ने अपनी गिरफ्त बदिया पर से ढीली की थी, और वो तेज़ी से उठती एक तरफ हो गई, जबकि बेरम अब भी बैठा ही था। क्या अब तुम्हें तरीके भी समझाने पड़ेंगे? मसनूई गुस्से से उसे घूरता अब वो कैस्पर को अच्छी खासी तबीयत साफ करने वाला था बदिया के सामने, लेकिन भला हो कि वो चुपचाप बिना इधर उधर देखे बैठक से बाहर निकल गई थी, जबकि उसके निकलते ही उन दोनों का कब रुका कहका निकला था। बता के नहीं आ सकता था। काफ़ी दिनों बाद दोनों इसी तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे, वरना तो बेरम ज़्यादातर संजीदा ही रहता था। गलती की माफ़ी बेरम, पर आपका कमरा छोटा पड़ गया था। मुअद्दब सा सर झुकाता वो बोलते बोलते फिर से शरारत कर गया। ऐना कहाँ है? कैस्पर के बैठते ही उसने ऐना का पूछा था। अपने कमरे में है। क्यों बेचारी का खून खुश कर रहा है? जब से पता चला है तूने बुलाया है, तब से घबराहट के मारे वो 10 आम, 6 दर्जन केले और बेतहाशा अमरूद खा चुकी है। ये घबराहट में खाया है उसने? हैरत से आंखें खोले अब वो दोबारा दोहरा रहा था कि ये घबराहट में खाया है तो आम सूरत हाल में वो कितना खाती होगी। खैर ये बता, बुलाया क्यों है? कैस्पर भी मुद्दे पे आ गया। हम चलो ऐना से मिलके बताता हूँ क्यों बुलाया है। पल में संजीदा होता वो उठ खड़ा हुआ था। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। वो सामने ही फलों से भरा थाल रखे बैठी थी। सच में बेरम, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया। केले से भरा हुआ मुंह लिए बोलती वो बेरम को देखते साथ ही अपनी सफाई देना चाह रही थी, जबकि ऐना का खौफ और मौजूदा हालात देखते ही वो कैस्पर ने बामुश्किल अपना कहका रोका था। कैस्पर के अंदर आने के बाद वो पीछे मुड़ के खुद दरवाज़ा बंद करता ऐना का रहा सहा सुकून भी गारत कर गया था। पक्का आज तो ऐना गई, दिल में सोचती वो डर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेरम के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ऐना के लिए हैरत का बाइस थे। वाकई बदिया को सच मालूम हो गया और ये खुश है। कैस्पर और ऐना हैरान थे। तुमने मेरी सबसे पहली परेशानी खत्म कर दी। ऐना के बराबर बैठता वो पूरी तरह ऐना की तरफ मतवज्जे था। क्या वाकई? ऐना अब भी बेयकीन थी कि बेरम बोल क्या रहा है। मुझे मालूम है बदिया को लेके तुम थोड़ा डरी हुई हो कि उसके चक्कर में मैं तुम्हें भूल रहा हूँ, यही ना? ऐना की तरफ उसने सवालिया नज़रों से देखा था, जबकि उसके इस तरह देखने से ऐना ने बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिलाई थी। तुम मेरी पक्की वाली दोस्त और हमेशा रहोगी। मेरी बीवी से तुम्हारी दुश्मनी तो है नहीं, और मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ कि हमारी शादी हो नहीं सकती। बिना बात को घुमाए वो साफ अल्फाज में बोल रहा था। तो तुम्हें किसने कहा मैंने तुमसे शादी करनी है? ये कैस्पर मर गया है क्या? बुढ़े बंदे से शादी का ख्याल, और वो भी ऐना इसकी बात का मतलब समझ के अब मजाक के मूड में आ गई थी। ये बेरम की दी हुई छूट ही थी कि वो इससे तुम की बात करती थी और इससे छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बेरम की शुरू से तवज्जो की वो बिला शिरकत गैर मालिक थी, लेकिन बदिया के आने से शराकत दारी का जो एहसास हुआ था उसे, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी कि बेरम तंग हो, या फिर बदिया, और बदिया को गिराने में जो हाथ था वो भी बेरम को एहसास दिलाना था कि ऐना भी इसकी ज़िंदगी में है, चाहे एक दोस्त की हैसियत से। क्या हम वो बात कर सकते हैं जिसके लिए तुमने बुलाया था? कैस्पर ने दोनों का ध्यान असल मुद्दे की तरफ लाया। बेरम का यूं अचानक ऐना के कमरे में उसे लेके आने से ही वो समझ गया था कि मामला काफ़ी टेढ़ा है। मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। यूं समझो कि अब खुल के खेलने का वक्त आया है। बेरम, खुल के कहो, जो भी कहना है। मेरे तो सर पे ऊपर से गुजर रही है तुम्हारी बात। मंगी का नाम तो तुम दोनों ने सुना है? बेरम ने दोनों को देखते हुए पूछा। वही जो दूसरी बस्ती का है और इंसानी खून पीता है, और अपने लोगों को भी खून पीने और इंसानी गोश्त पर लगाता है, और अब काफ़ी अरसे से उसकी नज़र हमारी बस्ती पर है। ऐना ने अपनी मालूमात के मुताबिक बताया। उस मंगी की ही बात हो रही है ना? वही, हमें उससे अब अपने लोगों को बचाना है, और बदिया को भी। कल दावत दी है उसने मुझे और मलका को।
मकसद तो वाज़े नहीं, लेकिन उसके इरादे भी मुझे ठीक नहीं लग रहे मलका को लेकर। अब तुम क्या चाहते हो? कैस्पर ने सवालिया नज़रों से बैरम की जानिब देखा। मैं बदिया को भी उसकी नज़रों में नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो इंसान है और मंगी इंसानी खून और गोश्त का प्यासा, तो मैं किसी सूरत बदिया को वहाँ नहीं लेके जाना चाहता, जबकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है ताकि मालूम तो हो कि कौन सी नई चाल अब वो चलने वाला है। कैस्पर, कल का पूरा दिन तुम साए की तरह बदिया के साथ रहोगे, जबकि ऐना तुम कल मेरे साथ बदिया बन के जाओगी, यानी मलका। अपनी उथल पुथल होती धड़कनों को संभालती वो बेरम के शौक अंदाज पे हैरान थी कि आया ये वही बेरम है कि जिसकी वो उसकी असलियत जानने से पहले जानती थी। अपने इर्द गिर्द उसके हिसार को महसूस करती वो शर्माई लजाई सी बैठी थी। जब मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती खाने का थाल लेकर अंदर दाखिल हुई। मलका हल्का सा ताजीम झुकती वो खाने का थाल उसके सामने रख चुकी थी। ये बेरम ने खास आपके लिए भिजवाया है और सख्ती से हुक्म दिया है कि ये सूप तो आपको लाजमी ख़त्म करना है। बदिया उसकी बातों को तो क्या सुनती, वो तो यही सोच रही थी, क्या ये भी चमगादड़ है? सुनो, क्या तुम भी? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, बेरम दरवाज़ा खटखटाता अंदर आया था। तुम जाओ, मुलाजमा को हाथ के इशारे से जाने का कहते हुए वो खुद बदिया के नज़दीक पलंग पर बैठ गया। उसको इस तरह खुद के करीब बैठे देखते बदिया की हालत देखने के लायक थी, जिसका भरपूर नज़ारा बेरम का रहा था। क्या है? 10 मिनट की खामोशी में ना बेरम कुछ बोला था, ना ही बदिया। अलबत्ता बदिया इधर उधर देखती उसे नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी इन हरकत को दिलचस्पी से देखता वो बिल्कुल चुप था। और उसी चुप और आंखों की मार को बर्दाश्त करते करते आखिर तंग आके वो बोल पड़ी थी, मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ है तो ज़रूर बताइए, मैं हमतन गोश हूँ। बेरम के अंदाजे तखातुब पर वो सटपटाई थी। चलिए जल्दी से ये ख़त्म करें। बेरम का इशारा खाने वाली थाल पे था और सूप की जानिब था। मुझे भूख नहीं, अगर आपको खाना है तो शौक से खाइए, वरना पड़ा रहने दीजिए। एक बात पूछूं, ये कौन से दौरे पड़ते हैं आपको? कभी तुम कभी आप, होंठों को छूती मुस्कुराहट को दबाता वो सवाल कर रहा था। मकसद सिर्फ बदिया को आरामदा महसूस करवाना था कि अगर कोई डर अब भी उसके दिल में है तो बातों के दौरान पता चल जाए। दौरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम तो मैं शुरू से ही बोलती हूँ। अलबत्ता आप बोलना मैंने यहाँ आके सीखा है। मज़ार पे जाना चाहेंगी? बदिया की बात मुकम्मल होते ही बेरम बोला था। बेरम से इस बात की तवक्को तो उसने नहीं की थी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अपने सवाल के बदले में सवाल सुन के वो मुस्कुराया था। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर कि वहाँ जाके आप मुकरेंगी नहीं कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। वो शायद वापसी की यकीन दहानी चाहता था। मेरे पास और कोई ठिकाना है जो वापसी की यकीन दहानी आपको चाहिए? ठीक है, आप ये खाना ख़त्म करिए, मैं कुछ काम ख़त्म कर लूँ ज़रूरी, उसके बाद आपको लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी बातों के जाल में फंसती वो खाना शुरू कर चुकी थी, जबकि बेरम अब वहाँ से उठ चुका था। खाना खिलाने का मार्का सर तो कर आया था, लेकिन बदिया को अब मज़ार पे लेके जाना भी ज़रूरी था कि अगली बार वो बदिया से अपनी बात भी मनवा सके, जो कि आगे चल के उसे मनवानी थी। गुजरे बरसों से रिश्ते पे पड़ी धूल छुट्टी तो नहीं थी, पर कम ज़रूर हुई थी, लेकिन इतनी नहीं कि रिश्ते की असली शक्लें फिर से नज़र आ सकती। और इन चचा भतीजे के रिश्ते पर भी गर्द की तह जम ज़रूर गई थी, लेकिन गुजरे सालों में कदरें कम हो गई थी। शुरू में तो बेरम के लिए नजम का वजूद किसी भारी सिल की मानंद था, ऐसी सिल के जिसे उठा के नुकसान भी अपना था और ना उठा के भी अपने बाप के मरते वक्त के अल्फाज में भी नजम का जिक्र था। इसलिए मजबूरन वो माँ बाप के मान की खातिर नजम को बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी वजह, अगर वो नजम को जाने का कह भी देता तो ऐना को दुख पहुँचता। माँ बाप और ऐना की खातिर वो इस भारी वजूद को बर्दाश्त कर रहा था, जिसकी वजह से आज वो अपनी करीबी दोस्तियों से बिछड़ गया था। और ये ऐसा जख्म था जो बरसों बाद भी नहीं भरा था। कल के हिसाब से सब तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी, जिसमें ऐना को बदिया का किरदार अदा करना था। कैस्पर, मैं कर तो लूँगी ना। घबराहट तो थी कि बेरम के होते हुए अगर कोई गलती कर दी तो उसने तो वहीं शुरू हो जाना है, ये देखे बिना भी कि आसपास कौन कौन मौजूद है। हाँ, कर लोगी तो अब खाम खा में दिमाग तो ना खाओ। वैसे भी तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, बोलना तो सिर्फ बेरम को है। हाँ खैर, वैसे भी अपनी मलका की तरह खड़ूस बन के जाऊंगी तो कोई बात तो क्या मुखातिब भी नहीं करेगा। धड़ाम से पलंग पर बैठती वो बदिया के हर वक्त चेहरे पे रकम तासरात कैस्पर को सुना रही थी। तुम ये बताओ, बेरम से बात करूं? अब हम दोनों की पटरी से उतरना वो ऐना की तरफ घूम गया था। पहले बाबा से बात कर लो, उसके बाद बेरम से भी कर लेना, लेकिन अभी नहीं, एक लंबे अरसे के बाद। इतनी जल्दी मानती हुई वो कैस्पर को बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन उसकी आखिरी बात सुन के दांत कचकचाता वो उठ ही रहा था जब बेरम अंदर दाखिल हुआ। मैं कल वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम दोनों संभालना यहाँ के काम और तैयार रहना ऐना, मेरे आते ही हमें निकलना है। अंदर आते ही उजलत में बोलता वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि कैस्पर बोल पड़ा, अच्छे से जाना, रास्ता मत भूल जाना, कहीं खो के। बदिया के चेहरे में मानी खेजी से वो बोलता मुस्कुराहट दबा गया था, जबकि उसकी शरारत समझते हुए बेरम भी महज मुस्कुरा कर सर नफी में हिलाता अपने कमरे की जाने बढ़ गया।
जहाँ बदिया उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आए और दोनों मज़ार के लिए निकल सकें। काली लंबी कमीज़ जो टखनों को भी ढांपे हुए थी और साथ काले रंग का ही खुले पांचों वाला ट्राउज़र पहने वो सर पे सफ़ेद जालीदार चुनरी लिए हुए थी जिसने बालों को ढांप रखा था। बदिया का ये अंदाज बेरम के लिए नया था। तभी वो आंखों में हैरानी लिए दरवाजे में इस्तादा उसे देख रहा था। मुझे और बदिया भी परेशान सी खड़ी बेरम के इस तरह देखने और बुखला रही थी। इससे पहले कि बेरम उसके बिल्कुल नज़दीक आता वो जल्दी से बोल पड़ी, कब तक जाना है मज़ार पे? बदिया के सवाल करने से बेरम का होश की दुनिया से नाता जुड़ा तो वो अपनी बेख्तियारी पे काबू पाता 2 कदम पीछे हुआ था। आप यहाँ लेट जाइए। बेरम के कहने पे चेहरे पे सवालिया तासरात लिए वो उसे देख रही थी। आप लेट जाइए, इसके बाद जब आपकी आंख खुले तो हम मज़ार में मौजूद होंगे। क्या मैं होश में रह के आपके साथ नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, अगर आप जिंदा रहीं तो जिन रास्तों से होते हुए हम वहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ से इंसानों का होश में रहते हुए गुजरना नामुमकिन है और मैं नहीं चाहता कि दुनिया से बुराई इतनी जल्दी चली जाए। हंसते हुए कहता वो बदिया को कंधों से थामता पलंग पर लिटा चुका था ताकि जल्द से जल्द मज़ार से होके वो वापस आ सकें। अपने हाथ को उसके माथे पे रखे वो सिर्फ बदिया को घूर रहा था और आंखों पे साया फगन होती पलकें उसे नींद की वादी में धकेल रही थीं, जबकि बेरम हनूज हाथ उसके माथे पे रखे खड़ा था। तकरीबन अगले 10 मिनट के बाद उसके मुकम्मल होश से बेगाना होने के बाद उसने हाथ हटाए और उसे बाजू में भर के अपने परों को परवास के लिए फैलाता महल से बाहर निकलकर आसमान में खो गया। ये मंजर नजम ने भी देखा था। बेरम की नज़रों में बदिया के लिए एहतराम, इज़्ज़त, प्यार सब कुछ था जो कभी उर्मा के लिए उसकी नज़रों में भी होता था। और प्यार तो अब भी कहीं मौजूद था उर्मा के हिस्से का, लेकिन इन प्यार के कबाड़ों पे बरसों पहले उर्मा के चले जाने से जंग का ताला लग चुका था। पानी के मुंह पे पड़े हल्के छिड़काव से आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती वो माहौल से मानूस होने की कोशिश कर रही थी। अगले चंद सेकंड में माहौल से मानूस होती उठ खड़ी हुई, तब जबकि बेरम सामने खड़ा उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। आसमान पे छाया अंधेरा गहरा हुआ था। शायद आधी रात का वक्त था, पर ये क्या, यहाँ तो मरम्मती काम जारी था। मज़ार के अहाते में जमा मिट्टी और सीमेंट का ढेर मज़ार के अंदर चल रहे काम को जाहिर कर रहा था और इस काम को देख के उसे क्या कुछ नया याद आया था। झुमकी का मज़ार पे हुए धमाके का बताना और झुमकी का बात याद करके खुद झुमकी भी तो याद आ गई थी। सब कुछ याद करती वो ऐन उस दरख्त के नीचे आ खड़ी हुई थी जहाँ वो रोज़ बैठा करती थी। फिर उस दरख्त को छूते हुए वो घुटनों के बल दरख्त की जड़ों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। एक ख़ास उनसियत थी उसे इस जगह से, यहाँ के लोगों से, पर अब तो इनमें से कोई भी नहीं रहा था। रोते हुए उसने बेइख्तियार ही गर्दन उठा के दरख्त की ऊंची शाख पे कुछ ढूंढना चाहा और वो मिल गया था वहीं पे। लेकिन फिर ऊपर देखने के बाद उसने आसपास उसे ढूंढना चाहा। दरख्त की शाख पे बैठे चमगादड़ को देखती वो इधर उधर नजरें दौड़ाए बेरम को ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक याद आने पर वो दरख्त की शाख पे लटके चमगादड़ को देखकर हल्की आवाज में बोली थी, बेरम ये आप ही हैं ना? मासूमियत की इंतहा थी। जो बेरम अगले ही मिनट वहाँ से उड़ता बिल्कुल उसके बराबर आ बैठा था और अब दोनों बिल्कुल खामोश थे। सुबह की रोशनी आसमान की स्याही को चीरती अपनी छुप दिखलाने की कोशिश में सरगर्दा थी, पर स्याही रोशनी से गहरी थी और ज्यादा भी। अब हमें चलना है। बदिया को हाथ से पकड़कर खड़ा करता वो मज़ार से बाहर निकल आया था। दोनों चुपचाप चहलकदमी करते काफ़ी दूर आ गए थे, या फिर बदिया जिसे वे चहलकदमी समझ रही थी वो बेरम की जानी पहचानी सिमत थी। अभी वो यही नहीं समझ पाई थी कि बेरम एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा था और खटखटाते ही कुछ देर बाद एक औरत दरवाजे वाकिए वापस मुड़ चुकी थी। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। बदिया का हाथ पकड़े बेरम अब घर के अंदर दाखिल हो चुका था। मेरा इंतज़ार नहीं था आपको, तो मेरे साथ वाली का इंतज़ार था। खैर मैं जल्दी हूँ, मैं हूँ, ये रही बदिया। मैं ज़रा जल्दी में हूँ वरना कुछ वक्त ज़रूर बैठता। बदिया की हैरान होती ही नज़रों को वो नज़रअंदाज करता हुआ उधर से बाहर की तरफ चला गया और चंद मिनटों में ही गायब हो गया, ये जाने बिना कि पीछे वो क्या सोच रही होगी जिसे वापसी की यकीन दहानी तक उसने चाहिए थी। और अब बिना उसे वापस लिए, बिना उसे कुछ बताए एक अनजान औरत के सहारे छोड़ के चला गया था। बेरम की तरफ बढ़ते बदिया के कदमों में पहली लड़खड़ाहट आ चुकी थी बेएतबारी की। वो बुत खड़ी थी जब वो औरत उसके करीब आई। चलो अंदर आ जाओ। चला गया है वो जा चुका था, जबकि वो अब भी हैरान परेशान वहीं खड़ी थी। क्या उसे मालूम नहीं था कि वो उसके साथ आई है? बदिया को वहीं छोड़ के चला गया है। बेयकीनी की कैफियत में घड़ी वो उस औरत की बात भी नहीं सुन पाई थी और जो अब उस कमरे में आने का कह रही थी। बेटी अंदर आ जाओ। वो औरत दोबारा उसके पास आई। जब वो होश में आती तो ही उस औरत को देखती जो उसे कमरे में चलने का बोल रही थी। वो कहाँ गया? मुझे भी उसके साथ जाना था। बदिया टूटे अल्फाज में बोलती दरवाजे की जाने बढ़ी। वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। कोई काम आ गया होगा इसीलिए तुम्हें यहाँ छोड़ गया है।
ऐसे कैसे ज़रूरी काम आ सकता है? अगर कुछ था तो पहले मुझे बताना चाहिए था। यूँ बिना बताए जाने से मैं क्या मतलब लूँ? गुस्से में तेज़ तेज़ बोलती वो उस औरत को सुना रही थी, हालांकि इसमें उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी वो औरत बड़े पुरसकून तरीके से उसकी बात सुन रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उस मुस्कुराहट में क्या कुछ नहीं था, ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे की बेतुकी बातों को मुस्कुराते हुए सुनती है, बिल्कुल वैसे ही वो भी सुन रही थी। वापसी का सफ़र कितना सोना लग रहा था। उसको छोड़ के जाना मजबूरी बन गई थी और इस पर वो उसे एतमाद में भी नहीं लेके आया था। दिल उसके ख्याल से बोझल हो चला था, लेकिन उसका फ़िलहाल महल से दूर रहना वक्त की ज़रूरत थी। बदिया को हल्की सी खरोच भी अब वो नहीं लगने देना चाहता था, और कैस्पर के खुफिया पैगाम ने तो उसे ये कदम लेने पर मजबूर किया था। और फिर उसी वजह से दिल को समझाते हुए दिमाग ने एक मुश्किल फैसला लेना ज़रूरी समझा। मैं सही तो लग रही हूँ ना? आईने के सामने खड़ी वो पीछे बैठे दोनों से पूछ रही थी, जो आपस में किसी खास मौजू पे बात कर रहे थे। ऐना पे नज़र डालते बेरम को बदिया शिद्दत से याद आई थी। बिल्कुल बदिया जैसा हुलिया अपनाए वो बदिया जैसी लग रही थी, लेकिन वो बदिया नहीं थी, बल्कि काली चमगादड़ लग रही थी, जो बस्ती में नहीं रहती। लंबे दांत वाली कैप्सर के चंद फुलझड़ी जैसे जुमलों ने जहां ऐना को आग लगाई, वहीं बेरम को भी मुस्कुराने पर मजबूर किया था। चलो, बेरम को खड़े होते देख के ऐना भी बाहर निकलने लगी। जब कुछ याद आने पर बोलने लगी, रुको रुको, एक चीज तो रह गई, जल्दी करो ऐना, हमें वापस भी आना है और मुझे बदिया को वापस भी लाना है। तेज नजरों से घूरता वो बाहर निकल गया था कमरे से, जबकि ऐना बदिया को ताज ढूंढ रही थी, कमरे में जो उसने असलियत जानने के बाद उसी के कमरे में उतार फेंका था। कैस्पर, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम किससे से शादी नहीं करोगे? ताज ढूंढते ढूंढते वो कैस्पर से सवाल भी कर रही थी। काश ऐसा हो जाए, मैं तो खुशी से 2-2 शादियां कर लूंगा। शौकी से बोलता वो ऐना को तंग करना चाह रहा था, लेकिन मुंह से निकले अल्फाज आगे जाके हकीकत भी तो बन सकते हैं, ये उसने नहीं सोचा था। खुशामदेद, खुशामदेद। चेहरे पे मुस्कुराहट छुजाए दूसरे कबीले के सरदार मांगी ने उसे खुशामदेद कहा था। बहुत शुक्रिया। ऐना का हाथ थामे उसने हल्का सा सर को खम देते हुए शुक्रिया कहा था। आइए आइए। अपने महल के दरवाजे से हटते हुए उसने बेरम और मलका को अंदर आने की दावत दी थी। आंखों से टपकती शैतानियत और चेहरे पे सजी मकरू हंसी ने तो ऐना जैसी को भी जुज़बुज़ कर दिया था, पर बेरम को अपने साथ खड़ा देख के उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था कि कुछ भी हो जाए बेरम उसे कुछ भी होने नहीं देगा। वो तीनों अब चलते चलते मेहमान खाने में दाखिल हो चुके थे, जबकि मंगी, जो कि अपने कबीले का सरदार था, सरदार नहीं हाकम ज़्यादा था, वो बेरम के मुताबिक ताकत के जोर पे अब तक सरदार बना बैठा था। मुझे बहुत खुशी होगी आपने हमें मेज़बानी का मौका दिया। बेरम की जानिब मीठे अल्फाज उछालते हुए वो अब मलका की जानिब नजरें कर गया था। बेरम के कबीले में ही बगावत करके उसने अपना एक अलग कबीला बनाया था, और ये तब हुआ था जब बेरम बहुत छोटा हुआ करता था। यही वजह थी कि वो खुद को बेरम की नज़रों में बिछाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इधर उधर की बातें और खाने के दौरान ही उसने ऐसी बात की थी कि बेरम के लिए अपना गुस्सा छुपाना मुश्किल हो गया। आप तो बहुत खुश नसीब हैं बेरम, इतनी खूबसूरत मलका जो आपके पहलू में है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी औकात दिखा रहा था, जबकि बेरम का गुस्सा बढ़ने लगा कि अगर बदिया यहाँ होती तो वो ऐना के लिए ये सब नहीं सुन पा रहा था, तो बदिया के लिए तो अब तक सामने बैठी खूनी दरिंदे को मौत के घाट उतार चुका होता। लेकिन खुद पर काबू रखना जरूरी था। असली मोहरा तो अब तक सामने ही नहीं आया था। सरदार मंगी का बेटा, वो जिसने इंसानों का जीना दुश्वार कर दिया था, और अब तो बेरम के कबीले के लोगों को भी वरगलाने का काम इंजाम दे रहा था। सब छोड़िए सरदार साहेब, अपने साहबजादे से तो मुलाकात करवाइए, बहुत सुन रखा है उसके बारे में। जरूर, क्यों नहीं, बस कुछ ही देर में वो आपके रूबरू होगा, बस कुछ जरूरी अमूर निपटा के आता ही होगा। आइए हम बैठक में चलते हैं, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। बेरम को वहाँ से चलते का बोलते वो उठ खड़ा हुआ था, जबकि उसकी बात सुन के भी बेरम हनूस बैठा था। आपकी जो भी बात आपको करनी है यही मलका के सामने कीजिए, इन्हें भी पता हो कबीले के हवाले से हर चीज इनके भी इल्म में होनी चाहिए। उसकी बात को रद्द करता बेरम ऐना को देखते हुए बोला, जबकि अपनी चाल को कामयाब होते देखकर सरदार मंगी खुश सा बैठ गया। ऊपर से वो बेरम को मलका से दूर करना चाह रहा था, जबकि असल में तो वो ये चाहता था कि बेरम यहीं बैठे। उसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसने बेरम को फिक्रमंद कर दिया था, और उस फिक्रमंदी के 1% भी असर उसने चेहरे पे नहीं आने दिए थे। ये देखो, ये तुम्हारा शौहर अपनी पहली बीवी को अपने साथ बिठाए अपने दोस्त के घर दावत में आया है, जबकि तुम क्या हो, एक मोहरा, ऐसा मोहरा जिससे वो इंसानों पर कब्जा करना चाहता है, इंसानों के खून की एक एक बूंद उनके जिस्मों से निचोड़ लेना चाहता है। खून निचोड़ने से एक दिन पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया, जब वो उसके खून की चंद बूंदें इतनी आसानी से पी गया था। क्या तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? अब देखना, वो खुद अपने मुंह से बोलेगा उसके साथ बैठी औरत कौन है। लेकिन हाँ, तुम यहीं से सब देखोगी,
सामने मत आना वरना हो सकता है वो मुकर जाए। उसको वहीं खड़ा छोड़ते वो शख्स अब मेहमान खाने में दाखिल हो चुका था। खुशामदीद बैरम। हल्का सा झुकता वो बैरम को अपने अंदाज में खुशामदीद कह रहा था। हालांकि उम्र के लिहाज से दोनों में इतना फर्क नहीं था, लेकिन ओहदों के एतबार से बैरम का दर्जा उससे काफी ऊंचा था। बैरम ने भी जवाबन सर को हिला के उसकी बात का जवाब दिया था। ये कौन है बैरम? के बराबर बैठी लड़की को देखकर वो अपने बाप के बराबर बैठता जान बना पूछ रहा था। इससे पहले कि सरदार मंगी की तरफ से जवाब आता, बैरम खुद ही बोल पड़ा, ये मेरी बीवी और कबीले की मलका है। ऐना के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बैरम ने उसका तारुफ कराया। बैरम के जवाब ने दूसरी तरफ मौजूद नफूस के पैरों तले से जमीन खींच ली थी। बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। अंदर अब मुबारकबाद दी जा रही थी, लेकिन बाहर वाले इन अल्फाजों से नई नई बसी दुनिया उजड़ रही थी। खेल खेला जा चुका था। एक वक्त से पहले खेल के आया था और एक ने एन वक्त पे खेला था। दोनों के खेल में चंद चीजों का फर्क था। सरदार मंगी और उसके बेटे ने पीठ पे वार किया था, बिल्कुल पहले की तरह जब मंगी ने इसके माँ बाप पे वार किया था और पीछे ऐसी नफरत की छाप छोड़ी थी कि वो नफरत भरी छाप अब भी इतनी ही शिद्दत से महसूस होती थी जितनी बैरम को बचपन में महसूस होती थी। अपने माँ और बाप के कातलों में एक चेहरा इस मंगी का भी तो था, लेकिन इस आखिरी चेहरे के पीछे मंगी का चेहरा कहीं छुप गया था। मंगी की फैलाई खुराफात से ही तो आज वो कबीले का सरदार बना बैठा था, और अब के जो उसके बेटे ने किया था वो धमाका था, एक ऐसा धमाका इसकी गूंज दोनों कबीले के आखिरी सिरों तक भी जानी थी। जल्दी कीजिए सरदार साहेब, जो भी बात करनी है आपको। अगर कोई खास बात नहीं तो हमें इजाजत दीजिए। ठहरे हुए लहजे में बोलता वो उठ खड़ा हुआ था। मतलब वाजे था कि जो भी बात करनी है जल्दी कर लो, वरना मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। आप लोग करें बातें, मैं खाने का इंतजाम देखता हूँ। मंगी का बेटा जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से बाहर निकल गया। तो हो गया यकीन, या अब आप अब भी यकीन नहीं करेंगी? लहजे में शीनी समोए वो बदिया के दिल पे खंजर चला रहा था। आपको यहाँ यूं अचानक इस बुढ़िया की कैद से यहाँ लाने का मकसद आपको दुख पहुँचाना नहीं था, बस बैरम के मुतालिक आगाह करना था। अब आप चलिए, उस बूढ़ी को होश आ गया होगा। मैं सिर्फ ये चाहता था, आप एक रहम दिल मलका हैं और इस छोटे अरसे में आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और हम सब नहीं चाहते कि आप हमें छोड़कर वापस इंसानों में जाएं। पटांग की दलीलों से बदिया को वो मुतमईन करना चाह रहा था कि वो इन चमगादड़ों के लिए कितनी रहमदिल मलका थी, लेकिन बदिया उसकी बातें सुन ही कहाँ रही थी। वो तो ऐना और बैरम को एक साथ देखकर ही सदमे में थी, क्योंकि ऐना को बहुत कम लोग जानते थे उर्मा और नजम की बेटी की हैसियत से। बाहर के लोगों ने कभी भी ऐना को नहीं देखा था, तभी वो अपनी असली शक्ल सूरत में ही बैरम के साथ आई थी। लेकिन बदिया तो ऐना को पहचानती थी। लेकिन सरदार मंगी और उसका बेटा इतने भी बेखबर नहीं थे जितना बैरम इन्हें समझ रहा था। बेटा, तुझे परेशानी तो नहीं हुई? मेरी आंख लग गई थी जरा। तूने खाना तो खाया ना? खा लिया था। बदिया ने खा लिया था कहकर दूसरी जानिब करवट ले ली, जैसे अब वो सोना चाहती थी। उसको करवट लेते देखकर वो औरत भी अपने छोटे मोटे काम निपटाती दूसरी चारपाई पर जाकर लेट गई थी। मुझे आपके कबीले में हमारे कबीले की जो जमीन आती है वापस चाहिए। सरदार मंगी ने कुछ पसोपेश के बाद आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी थी। ये मुमकिन नहीं, अब की बार बैरम की बजाय मलका बोली थी, जबकि बैरम उचंबे से मंगी की जानिब देख रहा था। इतनी मामूली चीज के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, और जहाँ तक बात जमीन के टुकड़े की है वो ना तुम्हारी है और ना तुम्हें मिलेगी। चलो यहाँ से। बैरम ने एक मिनट नहीं लगाया था वहाँ से निकलने में। आनन फानन वो ऐना को वहाँ से लेकर निकल गया था, जबकि पीछे वो बाप बेटा अपनी चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तीर निशाने पर लगा है? जी 100%। एन मौके पर मंसूबा तब्दील करने पर सरदार मंगी कुछ पुरएतमाद नहीं था, पर उसके बेटे ने जो पत्ता खेला था उसके मुताबिक तो तीर सीधा निशाने पे नहीं बल्कि मलका के दिल पे लगा था। मुझे पता है, पहली मलका को भी मैंने अपनी उंगलियों पे ही नचाया था। हाथ की उंगलियों को आगे पीछे घुमाता वो शातिर मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए हंस रहा था। दरवाजे पे लगा गोल सा सरिया पूरे जोर से बजाया जा रहा था। घर में मौजूद दोनों अफराद गहरी नींद में मालूम होते थे। काफी देर गुजर जाने के बाद जब दरवाजा खुलने के कोई आसार नजर नहीं आए, तो फिर वो अपने तरीके से अगले चंद सेकंड में घर के अंदर मौजूद था, और सामने ही वो दोनों अलग अलग चारपाई पे सोई दिन भर की थकन उतार रही थी। बदिया के चेहरे को देखते हुए उसने एक पुरसकून लंबा सांस लिया था। नहीं तो आज का दिन पहले बदिया को यहाँ छोड़ना बिना बताए फिर सरदार मंगी की वो मांग जो थी वो सरदार दरअसल छोटी लेकिन उसके पीछे छुपी बड़ी वजह ने काफी परेशान किया था इसे। पर बदिया को देख के सारी परेशानी कहीं दूर जा सोई थी। मलिका उसके कान के पास हल्का सा झुके वो अब बदिया को उठा रहा था। अपनी आवाज का खातर ख्वाह असर ना होते देख के उसने सोई हुई बदिया को कंधे पर उठाकर पर फैलाए और महल की जानिब लेकर बढ़ गया। बदिया मलका को उठा के बिठाते हुए वो खुद भी उसके पास बैठ गया था। जबकि नींद में डूबी आंखें खोलती वो बैरम को सामने देखकर पूरी आंखें खोल चुकी थी। उठ जाइए। मुस्कुराते चेहरे के साथ बैरम को देख के सारी चीजें दिमाग में तरतीब से चलने लगी थी। दूर होके बैठो हमसे। वो दोनों हाथों से बैरम को धक्का देती उठ खड़ी हुई थी।
झूठे हो तुम, सब अजीब जिंदगी बना दी है मेरी। अच्छी खासी इंसानों के बीच थी, अपनी जिंदगी जी रही थी, पर नहीं, पहले तुम आए, मुझसे शादी की, फिर यहाँ ले आए, यहाँ पे मलका बनाया, लोगों के बीच में घुलने मिलने को कहा, उसके बाद झुमकी को लाए, उसे यहाँ रखा, फिर एक दिन तुम्हारे जैसे एक ही चमत्कारे ने उसकी जान ले ली, ये साबित करने के लिए कि तुम लोग उस जैसे नहीं हो, उसे सजा दी। और जब इस दौरान तुम सबकी असलियत खुल गई तो मीठे बन गए, चलो यहाँ तक भी मान ले दिया। इस पर मुझे वापस न ले जाने वाला एक दिन खुद कहता है, वो तुम्हें मज़ार जाना था, वहाँ से होके आते हैं, और तुम्हें वहाँ जाके ये मत बोलना कि मैं वापस नहीं आऊँगी। ये भी मान लिया, इसलिए सिर्फ इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता तुमने यहाँ जगह बनाई, दिल पर नहीं। तुम लोग में शायद एहसासात या मानी नहीं रखते। वहाँ लेकर गए, मज़ार दिखाया, फिर बिना कुछ बोले एक अनजान औरत के घर पर छोड़कर चले गए, बिना कुछ बताए। बेरम होंक बना, बदिया के इल्जामात सह रहा था, इस पर भी तुम्हारी अना को सुकून नहीं मिला शायद। फिर भी मुझे बेहोश करके दूसरे महल लेके गए, जहाँ महफिल सजाई हुई थी। अपनी पहली बीवी के साथ मिलके हाथ में हाथ डाल के बताया जा रहा था मेरी बीवी है। दावत का एहतमाम हो रहा था। अगर यही सब तुम हो तो इसमें मैं कहाँ हूँ? हाँ, मेरे जज्बात कहाँ गए? वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, जबकि बेरम बदिया को अपने लिए जज्बात जानकर कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इकरार से पहले बदगुमानियां जो आ गई थी। नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं जाना चाहती हूँ। जहाँ खड़ी होके वो बोल रही थी, अब वहीं बैठ के वो रो रही थी। आंसू तवातर से बह रहे थे। इंसानों के तो वैसे ही आंसू बड़ी जल्दी निकल आते हैं, और खास तौर पे औरतों के। वो भी तो इंसान थी, एक औरत होने के नाते वो आंसू बहा रही थी। इस वक्त वो खुद को हल्का करके अब रो रही थी कि बेरम उसे चुप करवा रहा था। गलत समझ रही हो, तुमने जो देखा वो एक रुख था, अब देखना जो दूसरा रुख कैसा है। इसके बाद मुझे बताना मैं गलत हूँ या नहीं। उसके सर को अपने दोनों बाजुओं के दरमियान रखे, अपने साथ लगाए वो उसे चुप करवा रहा था। अब जाके सरदार मंगी की चाल उसकी समझ में आई थी। उसने अपना मोहरा चल लिया था और अब बेरम की बारी थी। बेरम के हाथ लगा बरसों पर पुराना तड़प का पत्ता इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था, जिससे उसने चारों शाने चित हो जाना था। रोते रोते कब उसकी आंख लगी पता ही नहीं चला, जबकि बेरम के घुटने पर सर रखे सोती हुई मासूम सी लग रही थी। बेरम भी टिकटकी बांधे उसके हुस्न में गुम था। इंसान की वजह से इंसानों से नफरत करने वाला असीर भी हुआ किसी एक इंसान का। और आज उसकी आंखों में तैरते आंसू देखकर बेरम को एहसास हुआ कि नजम के दर्द का जब करीबी हस्ती को तकलीफ पहुंचती है, कितनी तकलीफ होती है। बदिया को बदगुमान करके मंगी और उसके बेटे ने जो किया था, इसका बदला लेने के लिए वो बदिया को सोता छोड़कर सीधा उस औरत के घर आया। वक्त आ चुका था, सब सामने आता। बेरम तुम? वो औरत सब कुछ छोड़ती हुई उठ खड़ी हुई। पता ही नहीं चला कब आते हो और कब चले जाते हो। बदिया को भी लेकर चले गए। आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आया, आपको लेने आया हूँ, बेरम के अल्फाज थे। पिघला हुआ शीशा। तुम मजाक कर रहे हो ना? वो औरत अभी बेयकीन सी खड़ी बेरम को देख रही थी कि शायद अभी वो कह दे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आपने ठीक सुना, मैं आपको ले जाने आया हूँ और आपको जाना होगा। नहीं जाऊंगी मैं वहाँ, तुमने कभी नहीं। उस जहन्नम से ये जिंदगी बहुत बेहतर है। क्या चाहते हो? वहाँ उस जहन्नम में एक बार फिर घुट घुट के मर जाऊं? जो भी है, लेकिन आपको चलना होगा और आप चल रही हैं, आपकी मर्जी हो या नहीं। बोलते साथ ही बेरम ने उसका हाथ पकड़ा और चुपचाप जैसे आया था वैसे ही चला गया, लेकिन उस औरत को लेके जिसके जाने से पता नहीं सब ठीक होना भी था या नहीं। हमले की तैयारी मुकम्मल रखो। मुझे नहीं लगता बेरम के खिलाफ मलका को भड़काने से कुछ भी होगा। मुझे बस जल्द से जल्द इस महल पे कब्जा चाहिए, और वहाँ कब्जे का मतलब दुनिया की चमगादड़ों पर राज करना है। मंगी और उसके बेटे ने एक और मंसूबा बनाया। मलका के महल पहुंचने के कुछ वक्त बाद अपनी खून आशाम फौज को लेकर महल पर हमला करेंगे, जिसका असल मकसद बेरम, मलका और तीसरे वजूद को मारना होगा। नजम और इन तीनों की मौत इनकी खुशी का सामान बनेगी, और वहाँ राज करने का जरिया भी। वो पहुंच चुकी थी, सब कुछ वैसा ही तो था, अपना अपना सा, पर उसकी शनाख्त अब वो नहीं थी जो पहले थी। वो यहाँ के रहने वालों में शुमार होती थी, पर अब वो ना इंसानों में शुमार होती थी और ना ही यहाँ के लोगों में। बेरम, मुझे ले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से वापस ले जाओ। इस अजियत से मैं गुजर रही हूँ, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो औरत अब भी गिड़गिड़ा रही थी। हम दोनों की अजियत का सबब एक ही शख्स है, और आपको इसका भी सामना करना है, क्योंकि अब बात बदिया की है। उसकी अपनी और आपकी तकलीफ के लिए मुझे ये करना है। बेरम उसे अपनी माँ के कमरे में छोड़ता खुद बदिया की तरफ बढ़ा था। वो अब भी सोई हुई थी, लेकिन अब जो कुछ भी होना था वो चाहता था सब बदिया के सामने हो, से राज उसके सामने खुले, और आने वाले वक्त के भी वो बारे में जानना चाहता था। ये भी कि अपनी आंखों से देखे कि उसको बेरम के खिलाफ करने वाला का क्या हाल होता है। मलिका बदिया के बालों में उंगलियां चलाता वो उसे उठा रहा था, और जाना पहचाना लम्स महसूस करती वो आंखें खोल गई। सामने ही मुस्कुराता चेहरा बेरम उसे देख रहा था। बेरम का सामना उसके लिए दुश्वार हो रहा था। अभी तो आंखें मीचती वो दोबारा सोने लगी। अपने जज्बात से आगाही तो बेरम को वो दे चुकी थी, और इस आगाही ने बेरम को खुली छूट दे दी थी। अभी तो वो उसका ऊपर झुका हुआ था और उसके चेहरे को अपनी वारफ्तगियों से गुलनार कर रहा था।
बेरम बेरम। बदिया की बारीक आवाज़ ने बेरम की समाअतों में मिठास घोली। दोनों ही एक दूसरे में गुम थे जब बाहर से मखसूस आवाज़ सुनाई थी, जो दूर से दुश्मन या किसी खतरे को देखकर बजाई जाती थी। बेरम के कानों ने वो आवाज़ सुनी। बेरम के सुनने की हिस्स इतनी तेज़ थी कि वो आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी, जबकि बदिया के कानों को उस आवाज़ ने छुआ भी नहीं था। मलिका उसके नाक की हड्डी पे अपने होंठों का लम्स छोड़ता वो बोला था, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप भी इस चाकू से खुद को मार लीजिएगा। उसके हाथ में चाकू थमाता वो बोल रहा था, अगर जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा आपको कोई छुए भी। बेरम, ऐना, कैस्पर, नजम सब महल के बाहर आ गए। आवाज़ तेज होती जा रही थी। इस सब में होश ऐना को आया था। बेरम, ये क्या है? हम खतरे में हैं। ऐना के लहजे से छलकती तशवीश देखकर बेरम मुस्कुराया। तुम हंस रहे हो? यहाँ बस्ती वाले हम सब खतरे में हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। इसलिए कि खतरा ना तो तुम लोगों को है और ना ही बस्ती वालों को। ये मेरे लिए है, बदिया के लिए है। इसलिए चुपचाप तमाशा देखो, या तो आर होगा या फिर पार। अपनी फौज को आगाह करता वो खुद अब इत्मीनान से बाग के बीचों बीच कुर्सी पे बैठा था, जबकि बाकी सब एक साइड पर बैठे बेरम को इत्मीनान देख रहे थे। और फिर वही हुआ जिसकी तवक्को बेरम ने की थी। महल और बस्ती पर बस्ती के लोगों को उनके घरों तक महसूस कर दिया गया। बेरम बेरम चलो यहाँ से। वो औरत जिसने महल में मौजूद मुलाजमों को बातें करते सुना था कि महल पे हमला होने वाला है, और बेरम बिल्कुल खामोश है, कोई दफा का बंदोबस्त भी नहीं किया। वो पहचान गई थी इस दुश्मन को, वो बहुत नजदीक से जानती थी। बेरम चलो यहाँ से। सारे और इस औरत को देख रहे थे जो बेरम को बाजू से पकड़े अपने साथ चलने का कह रही थी। नजम हक्का बक्का सामने खड़ी इस औरत को देख रहा था। नफशा तुम? नजम की आवाज ने उसे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। नजम नजम तुम ही इसे बोलो, वो यहीं आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। डर उसके चेहरे से आया था। मासी कुछ नहीं होगा, इधर उधर देखो मुझे। बनफ्शा के चेहरे को अपनी जानिब मोड़ता वो उसे अपने साथ लगा गया था। आज सबको सजा मिलेगी, कोई एक भी नहीं बचेगा। नजम की जानिब देखता वो बोला था। बदिया अब भी महल में मौजूद थी, लेकिन ऐना के कमरे में और दरबारियों के सख्त पहरे में बेरम के हुक्म पर। लेकिन एक हुक्म जो उसे मिला था वो था, ऐना के कमरे की खिड़की से वो देख सकती थी बाहर जो कुछ हो रहा था। और बेरम के साथ लगी इस औरत को देखकर उसे अंदाजा हुआ था कि वो जो कोई भी थी बेरम के बहुत करीब थी। वो दोनों बाप बेटा क्रोफर से सीना चौड़ा किए महल के दाखिली दरवाजे पे आए थे, जहाँ पहरेदार तो क्या उनके हथियार तक मौजूद नहीं थे। रास्ता साफ देखते वो लोग अपनी फौज के 10 लोगों को लिए महल के अंदर दाखिल हुए थे, जबकि बाकी की फौज बस्ती में थी। वहाँ कहाँ सरदार साहब, हम तो यहाँ हैं। इससे पहले कि वो महल के दाखिली रास्तों से अंदर कमरों में जाते, बेरम ने खुद उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया था। हा बहुत खूब, इसी ऐसे ही इस्तकबाल की तवक्को थी मुझे। सरदार मंगी ने बेहंगम कहका लगाया और आगे बढ़ता गया। बाकी खड़े अफराद को मंगी के साथ आई फौज ने घेरे में ले लिया, जबकि बेरम के पीछे पीछे वजूद को अभी तक इन दोनों में से किसी ने नहीं देखा था। तुमने गलती की मुझे ना करके। वो जगह तो मुझे चाहिए भी नहीं थी, पर तुम्हारी हट दर्मी ने और बरसों पुराने ख्वाब को पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी भूल है कि तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से जा पाओगे। बेरम ने तंजिया मुस्कुराहट मंगी और उसके बेटे की जानिब उछाली थी। बहुत खूब, हमारे रहमो करम पे खड़ा बेरम, जिसको वो मुकाम हासिल है कि सारे चमगादड़ उसके एक इशारे पर चलते हैं, आज हमारे रहमो करम पर खड़ा है। बहुत शुक्रिया तारीफ का, और मत भूलो कि तुम भी इन्हीं चमगादड़ों में से एक हो जो मेरे एक इशारे पर जान देते हैं। बेरम की बात ने कुछ लम्हे के लिए उसके बेटे की बोलती बंद कर दी। अब हमने इनमें से नहीं तुम्हारी मानते थे। हम अलग हैं, हम इंसानों का खून पीते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। बहुत खूब, मेरी मलका का खून तुम्हारी प्यास बुझाएगा तो तुम्हारी मलका का खून मेरी आंखें सराब करेगा। पीछे खड़ी बनफ्शा का हाथ पकड़ के उसे आगे खड़ा करता बेरम दिल से मुस्कुराया था, और सामने खड़ी बनफ्शा को देखकर मंगी के साथ साथ उसका बेटा भी डगमगाया था। बनफ्शा तुम जिंदा हो? मंगी के अल्फाज डगमगाए, जबकि वो अब भी बेरम का हाथ थामे खड़ी थी। हाँ, ये जिंदा है, जिसे तुमने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, मंगी का बेटा दौड़ता हुआ बनफ्शा तक पहुंचा था। उसे छू के महसूस करता वो बनफ्शा के गले लग गया, जबकि वो जो पत्थर दिल बनी अपने बेटे को भुला चुकी थी आज उसके सीने से लगी आंसू बहा रही थी। नहीं है ये तुम्हारी माँ। मंगी की आवाज ने बनफ्शा को जहाँ साकित किया था वहीं बदिया को भी नीचे आने पर मजबूर किया था, क्योंकि पास खड़ी ऐना को फुर्ती से पकड़ता वो खंजर उसी गर्दन पे रख चुका था। बेरम पुरसकून था। नजम मंगी को अंदर आते देख कर ही कहीं चला गया था, जिसकी बेरम को जरा बराबर भी परवाह नहीं थी। ये बहरूपिया है, मर चुकी है तुम्हारी माँ। मंगी का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह अपने बेटे को इस बहरूपिये से जुदा कर दे। ऐना की गर्दन पे रखे खंजर के जरिए अपनी बात साबित करने के लिए इश्तियाल में आके दबाव बढ़ा रहा था। वो मैंने मारा था अपने इन हाथों से अपने बेटे को। इस औरत से लिपटे देकर डर गया था कि अगर वो सच में इस तरफ हो गया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। इस कबीले का गद्दार था मैं, और वो मुझसे गद्दारी करने जा रही थी। अपनी बहन को बताने बेरम की तरफ देखता हुआ वो नफरत उगल रहा था। बेरम के माँ बाप के खिलाफ
राज करते थे वो लोग चमगादड़ों पे, और मैं क्या मामूली सा महल कारोबारी और बस्ती का रहने वाला। उससे मैं वो नहीं जानता था सच उगल रहा है, ऐसा सच जिससे बेरम कुछ हद तक वाकिफ था और कुछ हद तक नहीं। बदिया पहरेदारों को वहीं रहने का हुक्म देती बाग में आ गई, और ऐसे कि बेरम और बाकी सब से छुपी हुई। उसकी माँ ने अपनी बहन की शादी मुझसे करवाई, सिर्फ इसलिए कि जमा की गई दौलत भी ना देनी पड़े और मैं दरबारी बन के रहूं इनका। मंगी के अल्फाज उसके बेटे के लिए बिल्कुल नए थे। इसका बाप तो अपनी बीवी और उसकी माँ का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ को बेरम के माँ बाप ने मारा था, और उसका आधा बदला तो वो बेरम के माँ बाप को मार कर ले चुका था, और बाकी बेरम को मार करके उसकी जगह पे कब्जा करना था। और मंगी के मुंह से आवाज निकली हुई कहानी का वो रुख तो फर्जी था, जबकि पहला रुख ये था कि जो वो अब बोल रहा था। उसके माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी और तुम्हारी माँ की शादी करवाई, मुझे अपना नौकर बना लिया। पर वो क्या है ना कि वो वक्त एक सा नहीं रहता। मेरा वक्त आया, मैंने तुम्हारी माँ को इसकी बहन के साथ तुम्हारी बड़ी मासी और मासा के खिलाफ भड़काया, और कानों की कच्ची वो भी मेरी बातों के जाल में फंस गई। और फिर मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली, मैं रुक गया, अपने मंसूबे को रोक दिया। तुम्हारे आने से मुझे लगा अब वो तुम्हारी माँ को कुछ देंगे, जायदाद वगैरह, पर नहीं। तुम्हारे आने पे भी मैंने रहा वो एक दरबारी ही। भले वो लोग मदद करते थे, पर मुझे ज्यादा चाहिए था, दौलत चाहिए थी मुझे। दौलत मैंने और मेरे दोस्तों ने मंसूबा बनाया मलका और बादशाह को मारने का, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी माँ ने सुन लिया और बिना देर किए उन्हें बताने दौड़ पड़ी। आखिर बहन को मरते हुए कौन देखना चाहेगा। खून ने जोश मारा और वो बिना देखे महल की जानिब चल दी। कि मैंने ना सिर्फ उसे देख लिया था, बल्कि मुझे ये भी मालूम हो गया था कि वो सब सुन चुकी है और महल जा रही है। और फिर क्या बना ये देखे कि वो मेरी बीवी है, तुम्हारी माँ है। मैंने उसे मार दिया, उसे उन हाथों से मारा था मैंने। ये औरत नहीं है तुम्हारी माँ, मैंने उसे मारा था। मंगी चीख रहा था, उसे यकीन दिला रहा था कि सामने खड़ी औरत उसकी माँ नहीं, क्योंकि मैंने उसे मारा था। मैना के गले पर रखे खंजर की धार अब हल्की हल्की सुर्ख हो रही थी। बाबा, आपने क्या ये सब? वो बेयकीन सा कभी बेरम कभी अपने बाप और कभी बनफ्शा को देखता, और जाने अनजाने में इस बहरूपिये की असलियत बताते बताते वो अपनी असलियत बता गया। इससे पहले कि बेरम कैस्पर को इशारा करता, नजम की आवाज़ पीछे की जानिब से आई, और फिर यहाँ भी तुम्हारी बस नहीं हुई। तुमने बनफ्शा को मारने के बाद, नहीं मारने नहीं, अदमुआ करने के बाद अपने दोस्तों को लेकर महल के रुख किया और एक शातिर मंसूबे के साथ पीछे से वार किया तुम सब ने, क्योंकि तुम तो यहाँ के दरबारी थे। और फिर तुमने मलका और बादशाह को कत्ल किया, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले तुमने अपना रूप अपने साथी को दिया और खुद मेरा रूप लेकर वहाँ खड़े हो गए, इसलिए कि तुमने देख लिया था कि बेरम को और उसको ये साबित करने के लिए कि तुमने मुझे मोहरा बनाया है इसके चचा को, ताकि वो ये समझे कि मुझसे नफरत करने लगे। नजम की बात ने वहाँ खड़े लोगों पे तो नहीं, लेकिन बेरम की समावतों पे जरूर धमाका किया था। वो चेहरा नजम का चेहरा तो था, पर नजम नहीं था। ये बात बेरम की समझ में क्यों नहीं आई थी? शायद रिश्तों पर उसे भरोसा उठ गया था। तुम्हें किसने बताया? जिसको पता था वो सब तो मर गए वहशी दरिंदे बन के, और मैं आखिरी था जिसको मालूम था। ना 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 सरदार मंगी, तुम ही थे जिसने दौलत के लालच में अपना ये राज पिछली मलका को बता के कबीला लिया था। याद आया या फिर कुछ और बताऊं? खाने की दीवार पे लिखी उसकी आखिरी तहरीर, जो आज मुझे तुम्हें देख के याद आई, कि वो अक्सर मलका बनने के बाद तुम्हारा जिक्र करती थी और अपनी अहम बातें तय खाने में लिखा करती थी। और इतना पुराना राज भी इन्हीं तहरीरों में छुपा था, जिसे आज ढूंढा था मैंने, और आज तुम्हारी आमद ने वो राज भी फाश कर दिया। राज उठ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरदार मंगी की नजरें कहीं टिकी हुई थीं, और पलक झपकते ही खून का खेल शुरू हुआ था। मैना को छोड़ता हुआ वो बदिया को बालों से खींचकर काबू करता हथियार बना चुका था। बेरम के लिए ये झटकों बड़ा दिन था। जहाँ झटका बेरम ने दिया था, तो वहीं झटका उसे भी लगा था, नजम को बेकसूर जानकर। बदिया को बालों की मदद से पकड़ता वो अब घूर रहा था। आप दोनों काले पर फैलाए वो आर या पार चाह रहा था, जबकि इसकी फौज के वो 10 अफराद कैस्पर के आगे ढेर साबित हुए थे। इसमें जान बस्ती है ना तुम्हारी? बेरम और वो आमने सामने थे एक दूसरे के। बदिया को देखते ही वो गराया था, मुझे हुक्मरानी चाहिए थी, पर आज तुझे मार के मैं दहशत बिठाऊंगा। बदिया के हाथ पे अपने खून गाड़े वो खून को ललचाई नजरों से देख रहा था। इंसानी खून की खुशबू ही मदहोश कुन थी। खून आशाम आंखें बेरम का जब्त आजमा रही थीं। जाओ यहाँ से, बेरम की दहशत भरी आवाज बुलंद हो रही थी, तो वहीं उसके वहशत भरा रूप उजागर हो रहा था, जिसे देख के अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बेरम बड़ा है या ये महल छोटा। बेरम के इस रूप से आज तक कोई वाकिफ नहीं था, और होता भी कैसे? आज से पहले इतना जुनून आया बीत नहीं था उसे। मंगी को भी इस वक्त अपनी मौत वाज़ेह नजर आ रही थी। उसने अपनी कौम से गद्दारी की थी, बल्कि गद्दारी क्या, उसने इतने साल धोखा ही तो दिया था अपनी कौम को। उसी तरफ मलका होशो हवास से गाफिल हो चुकी थी, जबकि नजम सबको लेके महल के अंदर जा चुका था।
बनफ्शा को रास्ते में अदम हुआ देख के बचाने वाला चमगादड़ उसे इंसानों की बस्ती में ले गया था। क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पर काटने पड़े। और कुछ अरसे पहले उस बूढ़े चमगादड़ ने बेरम को बताया था कि बनफ्शा जिंदा है और मलका की बहन यानी बेरम की मासी, जिसको इसके शौहर ने कत्ल करना चाहा था पर वो बच गई और अब इंसानों के बीच रह रही है। मासी का मिलना खुशकिस्मती था या फिर बेरम की खुशकिस्मती। घर के पास मज़ार के बाहर बैठी मज़ारन उसकी मलका बन गई, बल्कि ना सिर्फ मलका बन गई बल्कि एक लाजमी जुज बन गई। 2 महीने बाद मुझे माफ़ कर दे नजम के सामने कान पकड़े खड़ा वो कोई और नहीं बल्कि बेरम था, जिसने आज तक सवाए बदिया के आगे किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी। आज नजम के सामने खड़ा था गर्दन झुकाए, और नजम जो पिछले 2 महीनों से इस इंतज़ार में था कि बेरम आए और वो भाई की निशानी को सीने से लगा के महसूस कर सके, आज बेरम को माफ़ी मांगते देखकर झट से गले लगा लिया था। बदिया कैसी है? पहले जैसी, पर अब वो डरती नहीं है। दोनों बैठे हुए मलका साहिबा को जेर बहस ला रहे थे, जो मंगी के वाक़े के बाद से इससे डरती थी और बेहोश हो जाती थी। आपको पता है उसकी उल्टी मंतक है, कहती है मैं आपसे प्यार नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि जो वो चाहती है हमेशा उसके उलट सोचती है। बदिया की बातें बताना वो बिल्कुल भी वो बेरम को नहीं लग रहा था जो वो था। सब मामूल पे आ गया था। बनफ्शा अपने बेटे को लेकर बस्ती में रहने लगी थी और वहीं उसके बेटे का इलाज भी चल रहा था। जबकि रहे कैस्पर और ऐना, दोनों अब भी वैसे ही थे, पर ऐना के वाज़े ऐलान के बाद कि कैस्पर उसका है और जब जो चाहें शादी करेंगे, किसी को मसला नहीं होना चाहिए। इसलिए वो दोनों ही अपनी शादी की जगह ढूंढने निकल पड़े थे, जहाँ सिर्फ वो दोनों ही। और जाने से पहले नजम से इजाज़त लेना नहीं भूली थी। बेरम बदिया के हाथों को अपनी आंखों पे रखे वो सुकून महसूस कर रहा था, सब ठीक हो जाने के बाद का सुकून। बेरम, मुझे माफ़ी मांगनी है आपसे, मैंने शक किया आप पर। बेरम के चुप करवाने के बावजूद वो बोल रही थी, और उसकी ये बात बेरम को बहुत अच्छी लगती थी कि वो दिल में कुछ नहीं रखती। मैंने शक किया कि ऐना, और कहा ना शश। इसको सिर्फ सर को अपने ऊपर झुकाता वो महसूस कर रहा था, और सिर्फ वो ही नहीं, बदिया भी इसी शिद्दत से उसे महसूस कर रही थी। इस दफ़ा कोई बिछड़ा नहीं था, सब मिले थे। किसी को चाचा, किसी को भतीजा, किसी को माँ, किसी को बेटा, और किसी को पूरा का पूरा बेरम। बदिया के मुताबिक बेरम पूरा का पूरा उसका था, जिसमें ज़रा सा भी हिस्सा किसी और का नहीं था। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।